کا ضمیر پچھلی آیت میں کہاں لوٹ رہا ہے وہ لفظ میں نشاندہی کر دیں. یہ لیں, یہ اس سے بھی آخرین آسان کے کر بارے دی میں ہے. کیا بات بیان ہو رہی ہے؟ آخرین کو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا وہ آخرین؟ آخرین سے وہ آخرین کے لیے بھی یہی نبی ہیں جن سے ابھی نہیں ملے. ٹھیک ہے نا, صحیح ہو سبحان گیا. یہی اللہ، بات ہے. بات سبحان ختم ہو اللہ, گئی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, بات آخرین ختم کے ہو لیے گئی. بھی نبی پاک صلی الحمدللہ اللہ علیہ وسلم ہی نبی ہیں جی. وہ چلیں جی، جن سے بات ابھی ختم ہو نہیں گئی. ملے, جن سے نہیں ملے. ہاں جی، ان کے لیکن لیے بھی الحمدللہ, یہی پہلے مان نبی گیا ہیں. جی, ایک مان گیا ان کے وسیم, لیے مان بھی گیا یہی نبی ہیں. مان گیا. پہلے والوں سے میں وہی تو کہہ جو رہا نہیں ملے ہوں. ان کے لیے بھی یہی نبی ہیں. ہاں جی, ان کے لیے بھی یہی نبی ہیں. چلیں جی، بسم اللہ جی. آپ چلیں جی. مرزا صاحب کہاں سے آ گئے؟ اس میں ہاں تو جی, نبی پاک صلی اللہ اب علیہ وسلم ماشاء کا اللہ بیان ہو ماشاء رہا ہے اللہ، کہ آپ مبارک آخرین ہو. کے لیے بھی نبی ہیں. ہاں جی, ہاں گوگا جی. بھائی ضیاء بھائی کو بات کرنے دیں پلیز یار. اس میں یہ آپ نے خود تسلیم کر لیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اولین و آخرین دونوں کے نبی ہیں جی. مرزا صاحب کدھر ہیں؟ نہیں نہیں, ابھی ان سے ملے نہیں ہیں. یہاں پہ بات ہاں وہی نا, ہاں، ان جن کے سے لیے نہیں بھی تو ملے ان ان سے کے بھی ملے یہی نہیں نبی ہیں. ہیں. تو یہ جو بات یہی نہیں ملے کاظمی ان کے صاحب نے بھی کہی یہی نا کہ نبی ہیں. پہلوں سے تو ملے. ٹھیک ہے, او بھائی، لیکن بات جو ابھی ان سے نہیں 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 ملے نہیں, ان کے بھی یہی نبی ہیں، یہی کہہ رہے ہیں نا. تو بھائی میرے ابھی ان سے ملے آیت تو نہیں ہیں نا. نمبر ان سے کون آیت کون نمبر ملے گا؟ 3 میں, آیت نمبر 3 میں اگر یہ لکھا ہوتا نا هو الذی بعثا, دوبارہ لکھا ہوتا اگر, تو نہیں پھر نہیں نہیں آپ کی نہیں، بات. اگر ہوتا هو تو الذی زیادہ ہاں, صحیح جا رہا ہوں. یبعث هو ہوتا الذی یبعث, ہاں هو یبعث الذی ہوتا. یبعث, اور وہ کرے گا مضارع کے صیغے کے ساتھ. یبعث, بعثا یبعث, ٹھیک ہے. اگر وہ ہوتا اس کو جواب تو دینے پھر دیں، تو وہ بات, چلے گا. یا پھر ضیاء بھائی ایک اور بھی چیز ہو سکتی, اگر سین آ جاتا اس سے پہلے, جی جی جی, اگر سین آ ان کو وسیم جاتا تب بھی یہ کاظمی فیوچر کا صیغہ بن جاتا. کاظمی صاحب مضارع آپ کے ساتھ ساری سین چیزیں لگا دیں تو فیوچر کا صیغہ بن جائے گا. نہیں، کاظمی وسیم نے وہ بھی صاحب جواب نہیں ہے. دینا. وسیم جواب دینے دیں, وسیم کو جواب دینے دیں. منی نہ وسیم ہے, جواب دے بھائی. ہاں جی وسیم صاحب. ہاں جی, پہلی آیت میں مان لیا نا انہیں آخرین آخرین تو کے رسول ہیں. ٹھیک ہے نا, ان میں ان کی بعثت ہوئی. ٹھیک ہے نا, ہوئی نا. جی جی. تو ابھی جو آخرین ہے, ہاں ٹھیک ہے نا, ہاں دوسرے لوگوں میں بھی جو ابھی نہیں ملے, ہاں ٹھیک ہے نا, ہاں. تو ان سے بھی ان کی ملاقات ہونی ہے کہ نہیں ہونی, یہ مجھے بتائیں. ملاقات کدھر لکھا ہوا ہے یار؟ کدھر پیچھے والوں کی یار یہ کون سی باتیں کر رہے ہو؟ چھا گیا خود یار بتا رہے ہو نا, وسیم, آپ خود چھا بتا رہے گیا. ہو. لما یلحقو اچھا آپ, بہم لکھا ہوا ہے, لما یلحقو, یہ کہ ہاں اس کا جی, مطلب یہ ہے کہ جس رسول کی بات پچھلی آیت میں ہو رہی ہے نا, جو امیین میں اللہ تعالیٰ نے رسول اٹھایا ہے, جو آیتیں پڑھ کے ہاں جی, سنا رہا ہے, جو انہیں پاک کر رہا ہے, جو انہیں علم دے رہا ہے کتاب کا, حکمت کا, جس سے پہلے کہ وہ مطلب سری گمراہی میں تھے, وہی رسول ان کا بھی رسول ہے جو آخر میں آئیں گے. اور اس کے علاوہ, آخر کا مطلب جو ہوتا ہے نا عربی میں ہوتا ہے اس کے علاوہ, آخرین کا نہیں ہوتا. اچھا چلے, وہ تو ایک اور بحث ہے. اب میں آ جاتا ہوں اس کے وہی رسول. سن لو نہ پہلی بات نہیں, دوسری بات نہیں, بات سن لو, ہمارا عقیدہ سن لو, وہی رسول جس کا پچھلی آیت میں ذکر ہو رہا ہے نا, جس کو اللہ نے مبعوث فرمایا, وہی ان کا بھی رسول ہے جن سے ابھی تک ان کی ملاقات نہیں ہوئی. کس کی ملاقات نہیں ہوئی؟ رسول کی, جن سے ملاقات نہیں ہوئی. تو اس میں یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ وہ ملاقات کریں گے آ کے؟ یہ سیکنڈ باس کدھر لکھا ہے؟ جو ان سے ابھی نہیں, یہ تو قیامت تک کے لیے نبی ہیں, خاتم النبیین ہیں. یہاں پر تو یہ بحث ہے ہی نہیں ہے کہ وہ سب تمام دنیا کے لیے ہیں, یہ تو یہاں پر بحث ہے ہی نہیں ہے. بھائی جان یہی تو بحث ہے ادھر. یہ ہے کہ جو غلام قادر نہیں اللہ کا نبی ہے, وہ یہاں پہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ ہاں جی, ہاں جی, اس یہ میں کہاں کے لکھا ہوا ہے آخرین کہ جو منہم. مستقبل میں مبعوث ہوں گے؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ ہاں جی, ہاں جی, دوسرے لوگوں میں بھی. ٹھیک ہے نا, یہ دوسرے لوگوں میں وآخرین منہم, یہی نبی دوسرے ہاں جی. جو آخرین یا دوسرے لوگ ہیں جو ابھی نہیں ملے, ان کے لیے ہاں بھی ہے. ٹھیک ہے نا, بس بات ختم ہو گئی. نہیں بات یہی سن نبی لینا آخرین کے لیے ابھی. بھی نہیں ہے، نہیں یہی اولین نہیں کے لیے نہیں, بھی ہے. اچھا. پہلے کے لیے دیکھو, وہ خود اصول بتا رہے ہیں کہ پہلے کے لیے تو بعثت ہوئی, ٹھیک ہے, تو پھر ہاں. دوسرے کے لیے کیا ہوگی, وہ یہی کہہ رہے دوسرے تھے کے لیے بھی ہو کاظمی گئی ہے, اللہ صاحب. تعالیٰ نے خود ہی بیان فرمایا. نہیں نہیں, نہیں تو کیسے دکھا ہوگی, دیں ابھی دوسرے تو کے ان لیے سے ملے باسط ہی ہوگی, نہیں, دکھا ابھی دیں. تو ان سے ملے وہی ہی تو نہیں. سوال ہے, آپ کے لیے دوسرے کے لیے بعثت ہوئی. باسط ہوگی, یو باسو دکھا دیں. نہیں نہیں نہیں, یو باسو دیکھیں, پہلی وہ انہوں نے خود اصول بتایا نا آپ کو کہ جو اصول پہلی آیت میں ہوگا وہی دوسری میں ہوگا. بالکل ایسے ہی ہے, ہاں 100%. جی, پہلی آیت اب میں تو کیا ٹھیک ہے, اصول ہے؟ ابھی ان کیا سے پہلی ملے آیت ہی میں کیا نہیں. ہے جیسے کہ آپ مبعوث ہوگا یا مبعوث ہو چکا؟ ہاں جی, ہاں جی, نہیں نہیں, اب وہاں پہلی پر تو آیت میں کیا ہے؟ مبعوث ان کے آپ نے درمیان ابھی ہوا کہا تھا نا. جو ہو اصول چکا. پہلی آیت میں ہے وہی دوسری میں ہے. پہلی آیت میں ہاں جی, مبعوث ہو چکا ہے یا ہوگا ہے؟ ہاں جی, ہاں جی, ہو چکا. پہلی آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان موجود تھے کہ یا اس سے بھی پہلے کی بات ہو رہی تھی. مبعوث ہو چکے ہیں یا ہوئے؟ باسا کا مطلب بتا وسیم, ادھر ادھر نہ بات. باسا کیا, کون سا باسا کا صیغہ کیا ہے مطلب ہے؟ باسا؟ کیا مطلب ہے آپ نے خود باسا کا؟ تسلیم کیا کہ جی دونوں اچھا, آیات میں ایک اصول جی چلے اچھا, گا.
हाँ जी, यानी कि हम कायम है अपने असूल पे। ज़िया साहब हम तो अपने असूल पे कायम नहीं है, हम तो नहीं बदले। भेजा वही हाँ जी, बासा भेजा। का मतलब, बस बात हाँ खत्म जी, हो गई। ये इसका सीगा मतलब है माजी, कि ये आपने सीगा ये माजी का है ना। हाँ एक मिनट कंफर्म कर लें, ये बासा का सीगा माजी का है ना, मानते हो इस बात को? तो अल्लाह ताला ने उनके दरमियान में भेजा ना, अब आखिरीन में ये भी माजी भेजा का ना। सीगा है, मजारे का सीगा है, कौन सा सही सीगा है बुखारी बता? में बासा क्या है? बासा क्या पता है? बासा मैं क्या है? आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी बासा ज़ुबान जो भेजा, जैसे उनके दरमियान भेजेगा बाद में भी अल्लाह भेजेगा, यही चीज और ये किधर भेजेगा, किधर है? बादशाह ने माजी कहा के भेजेगा। वाह जी वाह। पर और सैयबासू किधर है? मिले ही नहीं है। अच्छा वसीम साहब हो गया। सैयबासू मैं किधर है? आपको व आखरीन मिनहुम की तशरीह जो नबी करीम तो हुक्म क्या है पीछे? हुक्म पीछे क्या है? पीछे हुक्म क्या है? हुक्म क्या है? हाँ जी, तो क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात का जहाँ पे हो रहा है ना अभी हुक्म क्या मौतूफ है? इले में, मौतूफ इले में, मौतूफ इले में हुक्म क्या है? मौतूफ इले में हुक्म क्या क्या है? मतूफ है? यार इनको ये जो ना, पिछली इनको यार, बेचारों को ये नहीं बुखारी पता। शरीफ से इनको सीधा मैं सीधा जो इन्होंने कहा है ना कि इनको दोनों में एक नहीं ही असूल पता। है। इसको जाओ सीधे- को क्या वसीम पता? जाओ बड़े भाई को लेके आओ यार, जाओ बड़े भाई को लेके आओ, जाओ बड़े भाई को लेके आओ यार, ऐसे ना करो। पहले आपने खुद जाओ इब्ने माजा को बुला लाओ, जाओ इब्ने माजा को बुला लाओ, उसे मज़ारे मजूरे बहुत पता है, हाँ जी उसे जो है ना वो मजाफ ले भी पता है, उसको लेके आओ जरा, उसकी जुबान से समझवाते हैं आपको। वसीम बड़े भाई को मनी लेके ना आओ, यार, हाँ जी। वसीम ये अच्छी बातें कर रहे हैं, हिदायत वाली लेकिन बातें हैं, जी ये आज मान इनको लो मौका इसी में दिया है, भलाई हमने है। कुरान से मिर्जा गुलाम कादियानी को सच्चा साबित कर दो। इनसे नहीं हो रहा। ज़िया रसूल अमीनी से कहो कि कुरान से मिर्जा गुलाम कादियानी को झूठा साबित कर दो, 2 मिनट में ना करूं मेरा नाम बदल देना। जिंदाबाद। माशा पर एक जगह पे नहीं, एक जगह पे नहीं, हमारे पास कोई 7100 हवाले हैं जिससे हम झूठा साबित कर सकते हैं। सिर्फ एक लगाया तो तुम उसकी ताब नहीं लाओगे। एक लगाया तो सिर्फ एक। जो जो करो जी वसीम साहब चैलेंज। हमने आपको चैलेंज सारे करो यार। मौके दिए, आपसे कुछ चैलेंज नहीं करो, बना। मैं फिर ना मैं रूहानी खजान खोला। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को कुरान पाक से झूठा साबित करो। नहीं है, मेरी बैटरी 0 पे चली गई है, हो सकता है किसी पे मैंने चार्जिंग पे लगा दिया लेकिन मुझे अच्छा। पता नहीं कि वो चलेगा कि नहीं। वसीम साहब ऐसा कोई बात कीजिए, नहीं, कल हम आपको अपने नहीं साथ कहेंगे किसी कि आप और को भाग लेके गए। आइए। वसीम साहब कल किसी और को भी लेके आइए प्लीज, कल तशरीफ लाएं। जाओ मैं बड़े भाई को लेके आओ। जहाँ तक हो और यार बुखारी शरीफ को फिलहाल छोड़ो, कुरान की बात हो रही है यार, अल्लाह के कलाम की आप आना बात हो रही चाहेंगे? है, बुखारी शरीफ को ना लेके आओ बीच में। वसीम वसीम आप साहब कल हिदायत आप की आना तरफ चाहेंगे? आना चाहते हो तो बेहतरीन जगह है, बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। कल आप आना के चाहते हैं? काम करने। काजमी साहब एक मिनट। वसीम भाई कल आप तशरीफ लाएं, साथ में आपने कोई भी साथी हैं उनको लेके आए, ठीक है? अच्छा, एक आयत की तशरीह मैं करूँ, ज़िया साहब करें या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद करें, किसकी काबिल कबूल है? ये क्या सवाल कर दिया है? तशरीह किस की तरह का नहीं। सवाल है? उस आयत कुरान की बात हो रही है। हाँ जी, कुरान मजीद की उस आयत की तशरीह। अब तुमने ईमान को सुरैया पर लेके जाना है। मैं तुम्हें सुरैया पर मैंने पहुंचा देना है, तुम्हें सुरैया पे हाँ जी हाँ जी। हदीस लगा दूं। डर क्यों लगता है फिर, क्यों डर तुसी लगता है? पाइए उसमें फिर तुमने साबित करना है, कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने अपना हसब नसब मुगल बरलास से फारिसुल असल में चेंज कैसे किया। वसीम देखो, वसीम ये देखो, इन्होंने उस तरफ कोई जाओगे बात ना अपनी तो तरफ से इतना नहीं बड़ा की। पिंडोरा बॉक्स तुमसे संभाला नहीं जाएगा। ज़िया ना जाओ ने उस तरफ, और ना एक जाओ। भाई ने आपको कुरान से हर चीज साबित की है, तो आपको मान लेने चाहिए अल्लाह और अल्लाह के रसूल और उसके अहकामात भाई मेरे को। असल चीज ये है। अहकामात मैंने आपको ज़िया साहब एक मिनट वसीम भाई, मुझे ज़िया साहब से बात करने दें। ज़िया साहब जिथे सानू लैके जा रहे हैं ना, ज़िया साहब जरा अनम्यूट, जिथे सानू ले जा रहे हैं ना, इन्हों पता नहीं है कि अगे जाके फिर इन्हें ना मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी नू जिहड़ा उन्हें अपना हसब नसब बदलिया ना मुगल बरलास तो किसी गलती की वजह से मशहूर हो गया था। मुगल असल में फारिसुल असल है। जब मैंने माइक म्यूट किया, कहा क्या इन्होंने, मेरी कॉल आ गई थी जब माइक म्यूट कहते हैं इन्होंने ये कहा है कि ये जो आयात है इनकी तशरीह जो है, जो नबी पाक ने की है वो मोतबर है, या जो मैंने की है, जो आपने की है। तो हमने कहा कि भाईजान नबी पाक की अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। तो अब ये जिस हदीस की तरफ हमें लेके जा रहे हैं ना, जो मैंने हाईलाइट की हुई है, वाखरीना मिनहुम लम्मा यल्हक़ू बिहिम, उसी पे हाँ जी, ये ईमान को सुरैया पर लेके जाएंगे और वहाँ से फारसी साबित करेंगे। तो इन्होंने ये भी साबित करना है कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी ने अपना हसब नसब मुगल बरलास से बदला कुछ नहीं किया। साबित हुआ इनसे, आप ये हदीस की तरफ जा रहे हैं, यही बात है जी। कुरान पाक से आप जी, और फिर ये जाएंगे सलमान फारसी के ऊपर, फिर वहाँ से ये फारसी साबित करेंगे। वो बड़ी लंबी कहानी है वसीम।
बहुत लंबी कहानी है, हम कह रहे हैं। ये तो मान रहे जाने हो की ना, जरूरत ही नहीं है। ये तो आपने मान इतना रहे लंबा हो चौड़ा कि होके इनकी जो नस्ल जाना में है, से आपको डायरेक्ट यहीं पे साबित कर देते कुरान पाक से कि मिर्जा गुलाम कादियानी अल्लाह का नबी नहीं था। बात खत्म हो एक मिनट जी, एक मिनट जरा रुकें जी। इब्ने माजा साहब तशरीफ लाए हैं। अच्छा गुजारिश ये कल के लिए नहीं रख जी, लीजिए। आज मैं वसीम साहब को एक ऐसा चैलेंज देने लगा हूँ, आप हैरान हो जाएंगे, आप हैरान हो चलें जाएंगे। जी। वसीम साहब, अगर आप मिर्जा गुलाम कादियानी की बात पे ईमान रखते हैं कि जो उसने कहा वो दुरुस्त है, शर्त मेरी सुन लें, शर्त सुन लें। अगर आप मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी पे ईमान रखते हैं कि जो कुछ उसने कहा वो दुरुस्त है, तो इस शर्त की बुनियाद पे मैं कुरान पाक से मिर्जा गुलाम कादियानी का नाम निकाल कर दिखा दूंगा कि उस पर शैतानी वही नाज़िल होती है। जबरदस्त जबरदस्त। जिंदाबाद। इससे बढ़ के कोई सबूत चाहिए आप? अच्छा अच्छा, अभी लेना इब्ने माजा को, अभी बड़े अब कह रहे थे ना अपने नहीं नहीं, कल के लिए रख ले आए। लीजिए, कल के लिए रख नहीं नहीं, लीजिए, आप अभी भी आ कल जाएं। अभी कल याद आ गया ना आपको, अभी बड़े सीगे माजी ये हाय वो, हाय ये क्या हो रहा था। हाय 4 हाय। घंटे से आप नाल ही होल्ड देखो कर जरा, रहे हैं। नाल ही एटीट्यूड बदल गया। हाय 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 और ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਬਨੇ यार माजा जी। एक काम करो, एक काम करो वसीम, एक ही दफा अपने खलीफा पंजम को ही ले आओ यहाँ नहीं पे। नहीं, अब आप एक ही दफा हम सबको ही समझा देते हैं, एक ही दफा। यार रसूल साहब पंजम। वहाँ से भागे ना, यार रसूल साहब फिर वहां से कुरान से छोड़ ना मन्नी खलीफा पंजम, ना मन्नी। आप हर जगह से भाग गए। मनी ना मनी मनी ना। ना। वसीम साहब को मनी देखें ना। खतरा कितना पड़ गया। वसीम साहब को मैंने कहा देखें, जो मनी अल्लाह ना का प्यो सच्चा दिया पैगंबर पुता। होता है ना, उसके मानने वाले जो है कादवी साहब। उनका ईमान इतना पुख्ता होता है कि वो किसी को चैलेंज नहीं करने देते। मैंने आपके सामने इसको चैलेंज किया कि हम कुरान पाक से मिर्जा गुलाम कादियानी को साबित कर देते हैं कि अल्लाह का नबी नहीं था, झूठा था। इसकी हिम्मत नहीं हुई कि मुझे कहते करो जी, अगर कुरान तुम्हारे साथ है तो क्यों नहीं हिम्मत हुई कहने की कि करो साबित। ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ नहीं हो रही। मैंने देखे इनको इनको लाओ, इतनी रियायत इनको में लेके इतनी रियायत दी है, इनको इतनी लेके रियायत आओ, इनको इनको कोई भी लेके नहीं आओ। देगा। देखें इनकी रियायत इनको कोई भी नहीं देगा। ज़िया तो साहब, मैंने ज़िया इनसे साहब, कहा मैं कि समझता आप- हूँ, देखें जी, मैं इतनी समझता रियायत हूँ इनको मसला कोई भला नहीं किधर खत्म देगा। होना है ज़िया साहब, अभी इब्ने ज़िया साहब, माजा मसला भला किधर खत्म होना है? जब ये जो शख्सियत है ना, ये जिसकी तस्वीर लगी है, इसको ही ले आओ यार, जाओ इसको ले आओ। अभी इब्ने माजा आया ना, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ ਆਂਦਾ सरकार। सीगा, आगे पीछे नून, ठीक है, ये बासत सब आपको बताएंगे, लो उसको ऊपर। तो पहले आप हार तस्लीम करें ना अपनी, नहीं नहीं, मैं हार क्यों, तो मैं इधर तस्लीम करें कि यार मैं हार गया, मैं मिर्जा साहब का दफा नहीं कर सका, ताकि इक्को बारी मैं जमात तो भी तानू कढ़ावां पेश आज। करता हूँ। फिर आपको सलमान फारसी के ऊपर जाएगा, सलमान फारसी के ऊपर जाके आपने कहना आपने नहीं मानना। आपने खुद कुरान मजीद की आयत पेश कर दी कि जहाँ पे आपने कहा कि यहूद उनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे काज़मी पहचानते थे साहब, जैसे कि अपने डायलॉग बच्चों आगे को। बताओ। ठीक है ना, मनी ना बच्चों प्यो को दिया पहचानते पुता। थे, लेकिन उन्होंने 3 फिर भी घंटे हो इनकार गए मनी ना प्यो दिया पुता। साबित हो रहा कुरान। 3 घंटे मनी ना प्यो दिया पुता। तो कैसे वसीम मुमकिन है? मनी ना प्यो दिया पुता। वसीम 1-2 आयतें लेके अटकल पे लेके चल रहे हो, पूरा कुरान पेश कर रहे हैं आपको, हदायत की राह पे लेके आ रहा हूँ। आयत निकालें जी, इनके देखें जी, इन पे तमाम हुज्जत करते हैं, बहुत बहस हो गई है और इसको conclude आयत करते नंबर हैं। बताएं। काज़ी साहब आयत इब्ने निकाले, माजा माँ में कान अली ये नबी वाओ जिन अतफ वाले आई किधर है? ये काज़मी किधर है? वाओ अतफ सीगा, माँ कान माजी। अली नबी कह रहा जिन था अभी, आई अच्छा या गुल। खुद अपने मुंह आयत से निकाली। मांग रहा था कि इब्ने माजा को लेके आओ, वो आ गया तो अब डर लगना शुरू हो गया। अब कहते ये हैं कि मैं हार मान 4 घंटे पहले, ये 4 घंटे पहले कहा था आपसे भाई, 4 घंटे पहले। अब यार जब सब थक गए तो तुम लेके आ रहे हो। तुम मुझे इब्ने माजा की तौंस दे रहे हो, तुम मुझे इब्ने मनी माजा ना की प्यो तौंस दिया दे रहे हो। पुता। मनी ना प्यो प्यो दिया दिया पुता। सूरज चलो इब्ने माजा को लेते हैं, इब्ने माजा को लेते हैं हम। लेकिन एक मिनट मिर्जा साहब, एक मिनट, नहीं मिर्जा साहब, एक मिनट रुके ना, पहले मुझे शर्त तो रखने देना, ऐसे नहीं ना, ऐसे तो नहीं ना। इब्ने माजा को लेते हैं, पहले ये कबूल करें कि यार मैं मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब को डिफेंड नहीं कर सका, मैं हार मानता हूँ और मैं अपनी जगह पर कुर्सी देता हूँ इब्ने माजा साहब को, ताकि हम ये चीज़ ऑन रिकॉर्ड करके आपको तो जमात से आज ही निकलवाएं ना कि तुसी बड़े मुजाहिद बने फिरते हो। यार दे लो मेरा हवाला सुन, एक मैं आज सर जी, ओ यार ਤੁਸੀਂ 4 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵਸੀਮ ਭਾਈ 4 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਸੀਮ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ 4 काशी ਘੰਟਿਆਂ भाई ना ਤੋਂ करो, काशी भाई ना करो, जरूरत नहीं है ना ਵਸੀਮ करो। ਭਾਈ 1 ਮਿੰਟ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਯਾਰ। ਦੇਖੋ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੁੱਲ ਫੇਕਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਦਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਭਿਨੰਦਨ ਨੂੰ ਲਿੱਤਰ ਭੇਜਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
ਐਵੇਂ ਹਾਲ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ चलो ठीक चलो वसीम मानो इकरारे 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 हार करो, मेरा 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 इकरार करो कि तुमसे मामला हैंडल नहीं हुआ। अब तुमने अल्लाह ताला के वसीम कह फजल सकते हो से तुम्हारे पास नॉलेज यार नहीं है, रसूल तुम साहब के मुंह वाकई से निकलवाया कि हजरत कह दो इसमें गलती मानने में कौन सी बात है। उन्होंने और यार मिन्नता करके की करवाया इससे ज्यादा अच्छा वो चेक करो थले इब्ने माजा दा मैसेज चेक करो। मेरे पास टाइम शॉर्ट है ओ भाई, शॉर्ट टाइम में नहीं काम होना, जरा टाइम नहीं निकाल नहीं के अपने इब्ने माजा ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇ ਨਾ 4 हाँ वो हुणे तो डर गए ਪਹਿਲੇ ਵੀ 5-6 ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਮੈਨੇਜਰ ਆ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਆ, ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ, ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ। ਕਿਉਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ? वो डर जाता है ਪਹਿਲੇ बाद ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਇਬਨੇ ਮਾਜਾ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਮੈਂ। फजल से ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ज़िया रसूल जॉब ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ मनवाया कि कुरान मजीद मिन्नता जाओ करके नादिर पैर को फाड़ लाओ, के मसरूर पैर को फाड़ लाओ, के और जो सामने आया नादिर उसको को लाओ, पैर फाड़ के मसरूर को लाओ, इब्ने माजा को लाओ, मेरी तरफ से जिसको मर्जी ले आओ, लेकिन पहले ये बताओ कि तुम दिफा नहीं कर सके। ये कौन था मनी ना पियो दिया पुता वो कौन है कौन मनी ना मन्नी ना वसीम, मनी ना पियो दिया पुता मन्नी ना वसीम, का नाम ले रहा मनी ना पियो दिया पुता वो मन्नी ना पियो दिया। अपने माजे सीगे गिनवा रहा था बड़े माजी के, मुझे कह रहा था बस मनी ना पियो दिया पुता बस ओए उसको भी ले लेते हैं, ओए उसको भी ले लेते हैं, ओए उसको सुनो तो सही। ओ नहीं ज़िया रसूल नहीं ਇੱਥੇ ਹੀ ज़िया रसूल ਵੀ ਇੱਥੇ ਥੱਲੇ ਰਾਸ਼ਿਦ ਭਾਈ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸੁਣਾ। 5 बंदों के सामने ज़िया रसूल ने ये माना हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वफात का भी। पैरी पै के तू पे यार कोई हद है यार। वसीम साहब ये डिबेट का अंदाज होता है, मेरा ख्याल है पहली दफा आप कर रहे हैं। ये गुफ्तगू का अंदाज होता है कि आपकी मैंने बात कर ली, फर्ज कर लिया, आप अब दलील दीजिए। अपने दलाइल से आप 1 घंटे तक दलील नहीं दे सके। यार आप खुदा का खौफ करो, अपने नबी को पाँव पकड़ के मनवा रहे हो। दीन है तो ठीक ये है आपका भाई, झूठ हम तो पे कहते कायम हैं, मैं दीन आपके है। पाँव पकड़ता हूँ, आप मान ले। मैं तो अच्छा अब गुजारिश ये है कि आगे आप क्या करना चाहते हैं, आगे क्या मैं तो करना कहते है? इब्ने माजा को ले, वो बड़े चैलेंज कर रहे वो थे। फिर कह रहे हैं मैंने तो जाना है, लेंगे वो कह जरूर रहे हैं लेंगे, मैं भाग रहा हूँ, अभी से कह रहे वो हैं। जल्दी में है। और वो उन्होंने वो जूते नीचे सर पे मैसेज रखे करें, हैं। वो नीचे मैसेज करें कि मैं कम से कम 2 घंटे के लिए अवेलेबल हूँ। मैं भी हिम्मत करता हूँ, ज़िया साहब भी हिम्मत करते हैं। वो इतना हमारे पास टाइम नहीं है कि हमने जो गुफ्तगू आपके साथ की है अब वो नए सिरे से शुरू हो। आप या तो माने वसीम साहब, देखिए मेरी बात सुनिए। हक ये होता है कि अगर भाई चैलेंज हम करते हैं, हम खुला चैलेंज हम कहते हैं अपने खलीफा पंजम को ले आओ या मिर्जा साहब को कब्र में से निकाल के भी ले आओ, तो नहीं मनवा सकते तुम। हाँ, जिंदाबाद का वसीम 11 बजे से बैठे हो यार, 11 बजे से बैठे हो, तुम्हें कोई असर अपने नहीं हो पांचों खलीफा जमा मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को भी ले आओ ना, हम फिर भी रद्द कर देंगे अल्हम्दुलिल्लाह। हैदर करार भाई, हैदर करार काज़मी। यही कहना है, अब आपने यही कहना है। थोड़ी देर पहले यही काज़मी साहब झूठे अपने मुंह से साबित वसीम साहब, एक मिनट, वसीम साहब, तुम्हारे वसीम साहब। सीगे सूगे साबित नहीं होने। अच्छा सुनिए तो सही, कह रहे नीचे आ जाओ, हाँ जी ਤੁਹਾਨੂੰ वसीम ਆਰਡਰ ਆ ਗਿਆ ਇਬਨ ਮਾਜਾ ਦਾ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਥੱਲੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਵੀ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾ। ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਮਰਵਾਣਾ ਹੀ? बिल्कुल वो देखिए यार वसीम साहब वेरी सॉरी। अच्छा चलो यार, आखिरी बात करते हैं। चलो वसीम दुआए कनूत सुनाओ और नीचे उतर जाओ। और ये तुम्हारी दुआए कनूत सुनाओ, कर आया है दुआए कनूत सुनाओ। मौत हाँ यार वो बड़े आपने हमारे मुसलमानों से दुआए कनूस दी हैं। आज आपका ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਛਟਾ ਕਲਮਾ ਸੁਣੋ, दुआए कनूस। ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਛਟਾ ਕਲਮਾ ਸੁਣੋ। मैं आप और नहीं जी चौथा ही सुना दे, इतनी दूर नहीं जाओ, चौथा सुना दे। माजा को ऊपर लो, मैं आपको दुआए कनूस साथ सुनाऊंगा, फिर मैं नीचे ਉਹ ਯਾਰ ਉਹਨੇ ਜੁੱਤੇ ਸਰ ਤੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਸਣ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰਨ ਡਿਆ। नहीं ਉਹ नहीं ਕਹਿ ਰਹੇ ਉਹਨੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲਿਖਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਘਟੇਗਾ। ਹਾਂ नहीं उन्होंने को 2 घंटे वैसे टाइम है। घटेगा। दुआए कनूत की तरफ आप जा रहे हो ना, मैं कह रहा हूँ कि इब्ने माजा ऊपर बैठेगा, मैं उसके सामने दुआए कनूत सुनाऊंगा। चलो चलो हमसे यार, थोड़ा- अल्लाहुम्मा एक इन्ना मिनट, नस्तईनुका व नस्तगफिरुका मैं शुरू करवाती हूँ, मुकम्मल कर दे। एक मिनट सर, काज़मी साहब एक चलो, मिनट, मैं एक थोड़ी मिनट, पहले मैं ये कहता हूँ कि मैं दुआए कनूत सुनाता हूँ। वसीम भाई मैं दुआए वसीम भाई एक मिनट। ऐसे है इब्ने माजा को नीचे कहें कि 2 घंटे उनके पास टाइम है, मैं ऊपर लेता हूँ, चलें। वो 1 मिनट में आके, जैसे ज़िया रसूल ने कहा है ना कि मुझे साबित कर दो कुरान मजीद से, वो आके 5 मिनट में आपको साबित करके चला जाएगा, बात खत्म होगी। जब तक वो ਉਹ साबित इतने बड़े बड़े चैलेंज ना कर, ਉਹ ਭੱਜਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਫਸਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹਿਮਦੀ ਭਰਾ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ। हाँ जी ये अपने फौजी मारन लगे ਆਪਣੇ हैं। ਵੱਡੇ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀ ਮਾਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਹੈਗਾ ਤੂੰ। ज़िया रसूल Friendly को fire। पता चल गया है कि वो
आ गया तो उसकी शामत आ जानी है आप सब लोगों की, ठीक है। आ गया आने वाला। सही कह रहे हैं, उसकी शामत आ जानी है। वसीम साहब ने खुद कहा उसकी शामत आ जानी है। यार वसीम, पहले आप इस चीज़ का इकरार करो कि आपको नहीं समझ में आया जो हमने बात कही है, आप मिर्जा साहब का दिफा नहीं कर सके, इस बुनियाद पे खुले हम दिल से नमाज़ मान कर लो लेंगे। यार, क्या मुश्किल है। खुले दिल से तस्लीम करो, तस्लीम करो। नहीं नहीं, मैं तो तस्लीम कर रहा हूँ कि आप इससे लोगों कुछ नहीं होगा, आपकी इज्जत बढ़ेगी। यार आपने खुद तस्लीम किया कि नहीं किया उनको सच्चा आपकी इज्जत बढ़ेगी, आपको जमात से आज एक लेटर मिलेगा कि ये क्या आपने किया। बताएं आप मुझे, उसके नाम लिखा होगा खराज। नहीं कहा। हालांकि हमने आपको पॉकेट बुक्स भी दी हैं, पीडीएफ में भी दी हैं, आपके मोबाइल में भी हैं, फिर भी आप हार गए हो यार, ये क्या बात सूरह है। जुमा में आप खुद चले गए सलमान खान अखराज आबादन लिखा होगा वहां पे, अखराज आबादन। नेक्स्ट टाइम चलो ठीक है वसीम साहब, आगे का तय कीजिए, अब आपने क्या करना है। आगे अब आपको वसीम भाई कल तशरीफ लाएं आप। मैं तो देखे ज़िया रसूल साहब कल तशरीफ लाएं, बड़े भाई को साथ लाएं अपने, जब उनके पास वक्त हो, जब उनका मैनेजर ना आए, जब वो बैठ के बात कर सकें, आप तब लेके आए। उन्हें बताइएगा कि पहली बड़े दफा बुरे नहीं हालात हैं है इधर। ये कोई बड़े फास्ट पहली बॉलर दफा आए नहीं ने, है। पाकिस्तानी टीम में पहली नवे दफा नहीं है। फास्ट बॉलर आ गए। देखें मिर्जा साहब, यार एक मिनट यार ठहरे ना, एक एक करके कर लेते हैं बात, ठीक है। एक मिनट ठहरे वसीम भाई, थोड़ा पानी पी लें, बहुत देर से बोल रहे हैं। अच्छा देखें मिर्ज़ा साहब, आप इस चीज़ के गवाह हैं कि नहीं कि आप ही की ब्रॉड पे इब्ने माजा साहब से भी मेरी गुफ्तगू हो चुकी है, डॉक्टर ज़िक्रिया से भी मेरी गुफ्तगू हो चुकी है, और जुज्जे के साथ तो हमने बहुत लंबी गुफ्तगू कर चुके हैं, मसरूर साहब से कर चुके हैं, नादिर साहब से कर चुके हैं। यार कोई नया खिलाड़ी लाओ ना जिसका हमें पता ना हो। ये क्या पुराने चले हुए कारतूस हमारे सामने लेके आ रहे थे। वो सारे क्लीन बोल्ड हुए थे, हाँ, वो सारे ये सब चले हुए कारतूस ही जिनके नाम लिखे हैं, सब चले हुए कारतूस हैं। कोई नए कारतूस लेके आओ, कोई नई आइटम लेके आओ मार्केट में, कोई गार्डर और टिशू की मिसालों से बाहर निकल के हमारे से बातें करो ना। फिर अल्लाह कहाँ है, टिशू उठाएंगे तो साथ साथ जाएगा, जैसे टिशू वैसे ही अल्लाह के साथ ईसा जाएगा। ऐसी मिसालें हम नहीं करते। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, नाउज़ु बिल्लाह। कोई नई मार्केट में लेके आओ ना असल चीज़, क्योंकि हम तो तुम्हारी पॉकेट बुक से बाहर निकल आए हुए हैं बड़ी देर से। तो अब जरा पॉकेट बुक को छोड़ो। बातें हैं जब हदीस पे जाने लगे तो फिर आपको डर क्यों लगता है? तो पॉकेट बुक फेल होगी ना आज, पॉकेट बुक फेल हुई कि नहीं? आज वो भी डायलॉग खत्म हो गया कि कुरान हदीस से, वो सारी कुरान हदीस से शो हुए हैं। मैंने तो फिर भी तुम भाग गए हो। खुली ऑप्शन दे और हदीस भी इनकी मर्जी की, आयत भी इनकी मर्जी की। ये देखें, इससे बड़ी बात कौन करता है यार? इतना आप देते हैं किसी और को, टाइम देते हैं। फिर आप टॉपिक भी इनका। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसीम, आप कहीं भी साबित नहीं कर पाए हो मिर्जा कादियानी को वसल्लम, यही नबी, कहते हैं ना, यही कहीं भी साबित नहीं कर नबी करीम पाए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये खुद माना ना, हजरत सलमान फारसी के कंधे पे हाथ रख वाली बात की। बहरहाल वसीम कंधे पे साहब, हाथ वसीम रख- साहब कंधे पे आपने हाथ रख- गुफ्तगू बहुत अच्छे तरीके से की है, हम आपको अप्रिशिएट करते हैं। उधर भी वसीम आपका साहब, यही अक्षर होना है, आपने उधर भी यही गुफ्तगू अक्षर बहुत होना है। अच्छे सवाल तरीके तो से ये की। है कि क्या कुरान पाक से आपने साबित कर लिया? हाथ खड़े कर दें कि कुरान पाक से हमारे पास तो कोई सबूत वो- नहीं है। तो भाई मेरे, जब मैं आपको कुरान मजीद से ही बता रहा हूँ, आप कहते हैं कुरान पाक से कहाँ नहीं बताया जी, आपने? आपकी कुरान पाक मर्जी। से आपने ये साबित किया है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मबूस हुए हैं अव्वलीन और आखिरीन के लिए। नहीं आखरीन के लिए फिर से बासत होगी, ठीक है ना, बासत सानी का जिक्र है वहाँ पे। कहाँ पे? अच्छा जी, ठीक है कितने ना? लिखे अब है? जैसे कितने लिखे हैं? मैंने मीन हुमदा मतलब सब कुछ आ गया बेच। कितने लिखे हैं? बात पहले में दोबारा कैसे होगी, भेजा? फिर बात अल्लाह होगी, ताला कितने ने- लिखे हैं? नहीं नहीं नहीं, ये झूठ मत पहलों बोलो। में कैसे आए, भेजा ना, पहले में भेजा ना अल्लाह ताला ने, हाँ जी। तो आखरीन के लिए भी भेजेगा। आखिरीन के लिए आखिरीन के भेजा। लिए भेजेगा। आज में अल्लाह ताला ने बताया कि आखिरीन के लिए भी नहीं भेज दिया। भेजा नहीं, तो आखरीन दिखा के दे लिए जब आ भेजेगा, जाएंगे हम तो तो भेजा। कह रहे तो दिखा दे आज भेजेगा, आज देखें ना, भेजा दिखा दे भेजेगा, कहाँ लिखा हुआ है? आखरीन अब में भाई किस तरह से वसीम, भेजा? वसीम Physically इन अवलीन person के लिए मौजूद क्यों थे ना, आए थे इन वो? person, अवलीन के लिए क्यों आए थे वो? उनके लिए आयात पढ़े ताकि उनको पाक कर सकें, ठीक है। आ गए, तो आखरीन के दीन कंप्लीट कर दिया, दीन ओ यार, कंप्लीट कर दावत दिया। का- वो दावत का आखिरी खाना तक- खोल दें भाई, भेजेगा ना, दावत का अल्लाह खाना ताला खोल आखिरी दें। तक- भेजेगा। यार हमारे पास वैसे वो जो ये बैतुल फतूह में दाल बांटते हैं, हमारे पास वो तो नहीं है, लेकिन हम आपको जो है ना वो मीठी मीठी कोई और चीज़ ही बता देते हैं, जैसे डॉक्टर ज़िक्रिया साहब का अंदाज़ है। यार मैं वसीम भाई बात को लोगों ने समझें। मेरी काजमी हाँ सही 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 करे काजमी वसीम साहब भाई करें बात को समझें, देखें कज बहसी ना करें, आपकी बड़ी मेहरबानी, अपनी हार तस्लीम करें, इब्ने माजा ऊपर आ जाएगा, सिंपल बात है। और देखिए हमने कैसा आपको बताया, आपका आपकी बैटरी लो होने के बावजूद आप नहीं जा पा रहे, कैसी हमने शक्ल डाली आपको, अंदाजा लगाएं। हाँ जी, पहले में मिर्जा साहब का निशान आया पे इन्हों दे अगे। जैसे नबी करीम सल्लम पहलों में भेजे गए, तो बाद वालों के लिए भी भेजे जाएंगे, ठीक है। दोबारा आएंगे वो दुनिया में, जाएंगे, भेजे जाएंगे। दोबारा आएंगे, वही दोबारा आएंगे इस दुनिया में। बासा माजी का फेल है,
हाँ जी, आखरीन से मिले वो शायद में लिखा हुआ ना कि वो आखरीन से भी मिले, उसी में लिखा हुआ है कि मबूस फरमाया जिनसे नहीं मिले चलें उनके ठहलें, इनको ना एक मिनट ज़िया साहब, इनको कलिमतुल फसल पढ़ाते हैं। ठहरो ज़रा भाई, आपकी तशरीह नहीं चलेगी, जिस तरह आपने कहा था ना आमनतु तशरीह ऐसे नहीं बिल्लाहि व वैसे नहीं। मलाइकतिहि व कुतुबिहि। अब चलेगी बशीर अहमद एमए की तशरीह। हा, एक मिनट, हवाला आ रहा है। अच्छा, कलिमतुल आमनतु फसल। बिल्लाहि कमा बुखारी हुआ शरीफ को नहीं मानना। बिअस्माइहि व सिफातिहि पहले ज़िया कबिलतु रसूल जमीअ साहब ने बुखारी अहकामिहि शरीफ को खुद पलटा, खुद इकरार हदीसें बिल्लिसान व बताई, एक तस्दीक में कुछ है बिलक़ल्ब। एक में कुछ है, यानी कि हदीसों का खुद ही वजन बता दिया कि वो जन्नी होती हैं, वो कुरान वसीम के मनी ना मुताबिक नहीं पियो दिया होती। पुता मनी ठीक है, ना आज फिर पियो दिया इन्होंने पुता एक हदीस के जरिए से खुद बता मनी दिया ना पियो कि दिया एक हदीस पुता। से आज मैं दूसरी मान हदीस गया खत्म होती है, ठीक है। बाद में इन्होंने मान भी लिया, मैंने तो फिर उनको ओपन चैलेंज कर दिया कि जो ओ लो ते ज़िया तू रसूल पैरी साहब, पे आवा ना दे। दुनिया के जो मर्जी हवाला ले आए, मैं बात करने के लिए तैयार हूँ। वो तो आप इन्होंने उनके मेरी पाँव बात पड़े हो, मान ली, मैंने प्लीज कुरान यार मान लो यार प्लीज। ये कौन सी तबलीग कर रहे हो आप? कॉल आ रही हैं कि चलो यार बंद करके चले जाओ यार, बस करो, हमारी तजलील बंद हाँ करा जी, दो हाँ यार। जी, बस मैं कह रहा हूँ ना, खुद ज़िया रसूल साहब ने हदीसों को आज खुद एक हदीस से यकीन दूसरी करें हदीस कि को खत्म आज किया। आपकी फिर वो हुई उन्होंने है ना दो कि हदीसें बुखारी शरीफ में इन्होंने, हज़रत मसीह टिकटॉक मौऊद भी। इस्लाम ने यही कहा था उस वक़्त उन लोगों को कि उसमें भी इख्तलाफ आएगा, तो फिर क्या किस तरफ लौटोगे? यार आपने ठीक है ना, पानी तो पिया बुखारी वैसे की दो थोड़ा सा हदीसों में आ वसीम? जाए। हाँ वसीम जी, आपने पानी पिया? लो जी, आपके सामने हवाला हाईलाइटेड हाँ जी, मौजूद है, आखिरी कलिमतुल में फसल इन्होंने जिल्द नंबर 14। जब हाँ जब जी, पूछा गया, आ गए ना। जब अब चलो पूछा गया सबर करो ना, सहाबा से सबर करो पूछा ना कि वसीम। आखरीन कौन और है, साहबा को दूसरों के छोड़ो नाम नहीं फिलहाल, लिए। साहबा को ठीक है, छोड़ो फिलहाल, अच्छा, ये साहबा को देखो छड़ अपना दो, अकीदा लो जी पढ़ो, छड़ दो, अपना लो जी अकीदा नबी पढ़ो। छड़ दो, सुनो फिलहाल छोड़ो। कुरान को छड़ दो, दलील, सहाबा भी छड़ दो, पांचवें दुनिया भी एतराज का छड़ दो, जवाब। अच्छा चलो सुनो ना तफासीर भी यार, छड़ चलो दो, अपने सारा कुछ छड़ दो, अपने बशीर अहमद एमए की तशरीह तो पढ़ लो। इतनी बड़ी कुफरिया उसने तशरीह की है, वो तो पढ़ लो। तो इसका जवाब ये है, अब सवाल इनसे ये हुआ था कि अगर तुम नया नबी क्लेम करते हो। अब ज़िया साहब ज़रा सुनिएगा, ये मेरा ख्याल है आपने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं ये सारी चीज़ें, आपको तो ऑलरेडी पता है बात कितने केड़े पासे गल चल रही हूँ। अच्छा जी, ये देखें जी, ये यहाँ पर हम आपको जो है ना वो पाँचवा एतराज़ बता रहे हैं, जिसका जवाब कलिमतुल फसल। इसको अगर आपने फाइंड करना है, alislam.org/कुतुब का सिलसिला/कुतुब का सिलसिला बाय बशीर अहमद एमए, ग़ुलाम अहमद कादियानी साहब की दूसरी बीवी में से छोटे बेटे की ये किताब है, और इनके alislam.org पे मौजूद, पेज नंबर 185, जिल्द नंबर 14, कलिमतुल फसल। ठीक है जी। अब पाँचवा एतराज़ ये था कि भाई क्योंकि तुम्हारे नबी आ गया, फिर मिर्ज़ा साहब का कलमा क्यों नहीं पढ़ते, फिर ये क्यों नहीं पढ़ते, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह क्यों पढ़ते हो, और तुम अपने नबी का कलमा क्यों नहीं पढ़ते अगर नया नबी आया। उसके जवाब में देखें अब ये क्या लिख रहे हैं, ऊपर से शुरू करने लगा। तो इसका जवाब ये है कि जब इंसान किसी हक़ का इनकार करता है तो इसकी अकल मारी जाती है। ये अब सवाल करने वाले को कह रहे तेरी अकल मारी गई है, और ऐसी बहकी बातें करते हैं कि एक बच्चा भी इन्हें सुनकर हंसे। अब कैसी बेवकूफ़ी की बात है कि मिर्ज़ा साहब का मानना अगर ज़रूरी है तो इनका कलमा क्यों नहीं पढ़ते। देखो ना, सवाल तो बड़ा जेन्युइन है, लेकिन अब आगे ये देखें मजाक में बात को डाल दिए। ठीक है, आगे आए। गालिबन मोतरज़ का ये ख्याल है कि कलमा में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें मुबारक इस गर्ज से रखा गया है कि वो आखिरी नबी हैं। तभी तो ये एतराज़ करते हैं कि अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई और नबी तो इसका कलमा बनाओ। ठीक है, इतना नहीं सोचते कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम कलमा में तो इसलिए रखा गया है कि आप नबियों के सरताज और ख़ातमुन नबीन हैं, और आपका नाम लेने से बाकी नबी खुद अंदर आ जाते हैं। हर एक का अलहदा नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, हज़रत मसीह मऊद के आने से एक फ़र्क पैदा हो गया, वो ये है कि मसीह मऊद की बेसत से पहले तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मफ़हूम में सिर्फ़ आप से पहले गुज़रे हुए अंबिया शामिल थे, मगर मसीह मऊद की बेसत के बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह के मफ़हूम में एक और रसूल की ज़्यादती हो गई। लिहाजा मसीह मऊद के आने से नाउज़ुबिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा बातिल नहीं होता, बल्कि और भी शान से चमकने लगता है। ये देखिए कुफरी बात, और भी शान से, मतलब मेरे नबी की शान बढ़ा दी आके इस बंदे ने। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। गर्ज़ इस पे भी
غرض اب بھی اسلام میں داخل ہونے کے لیے یہی کلمہ ہے، صرف فرق اتنا ہے کہ مسیح موعود کی آمد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مفہوم میں ایک اور رسول کی زیادتی کر دی ہے، اور بس بڑی معمولی سی بات ہے. اوکے، علاوہ اس کے اگر ہم بغرض محال ایلو جی بغرض محال آ گیا، جس طرح اسی تہاڈیاں گلاں بغرض محال ہے، تہاڈے بھی بندے نے بغرض محال ہے. علاوہ اس کے کہ اگر بغرض محال یہ بات مان بھی لیں کہ کلمہ شریف میں نبی کریم کا اسم مبارک اس لیے رکھا گیا ہے کہ آپ آخری نبی ہیں، تو تب بھی کوئی حرج واقع نہیں ہوتا، اور ہم کوئی نئے کلمے کی ضرورت پیش نہیں آتی، ہمیں بھی کسی نئے کلمے کی ضرورت پیش نہیں آتی، کیونکہ مسیح موعود، اب یہ دیکھیں یار ڈبل ہائی لائٹڈ جو میں نے کیا، نبی کریم سے کوئی الگ چیز نہیں ہے، جیسا کہ وہ خود فرماتے ہیں. یہ انہوں نے کچھ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، من فرق بینا و بینا، ٹھیک ہے، مصطفیٰ یہ انہوں نے ریفرنس دیا ہوا ہے. اور آگے، اور یہ اس لیے ہے جی اور یہ انہوں نے اپنی کتاب کا ریفرنس دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اور اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا. اب یہ دیکھیں اس آیت کی معاذ اللہ جو یہ تشریح کر رہے ہیں، اب یہ دیکھیں کہ آپ اصل بات ہی آ گئی ہے نیچے. یہ وآخرین منہم لما یلحقوا کا جو ترجمہ لے رہے ہیں نا، وہ دیکھیں اب انہوں نے کیا کیا ہوا ہے. یہ دیکھیں اب آ گئی یہ بات. اور یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ وہ ایک دفعہ اور خاتم النبیین کو دنیا میں مبعوث کرے گا. یہ اللہ پہ معاذ اللہ بہتان بنتا ہے، جیسا کہ آیت آخرین منہم، یہ وہی آیت ہے جو ہم نے پہلے دکھائی تھی، سے ظاہر ہے. سلمان فارسی کی پہ جو کندھے پہ ہاتھ رکھ کے بات کی ہے، ایک منٹ ٹھہرو نا یار، صبر تو کرو نا. حدیث ہماری سپورٹ میں کھڑی ہے، اگر آپ کو نہیں پوری عبارت پڑھنے دو نا. اچھا، جب بات آئی ہے نا مین مدعے پہ، تو آپ نے بات کاٹنا شروع کر دی ہے یار. اس کو ذرا نا پلیز میوٹ کیجیے ان کو یار، بات پوری کرنے دیں مجھے، پوری بات کرنے دیں، بس اب پوری بات کرنے دیں. یار میں نے آپ کو فری ہینڈ دیا تھا پوری لائن پہ. ایک منٹ ٹھہریں، یہ پوری پڑھ لیں، ٹھیک ہے، وہ اپنی ایمانداری کے ساتھ مجھے پوری پڑھنے دیں، مجھے بات پوری پڑھنے دیں. آپ کا ترجمہ سنا رہا ہے بھائی، اپنا کوئی نہیں پڑھ رہا ہے. یار میں آپ کی عبارت پڑھوں، مجھے پڑھنے دیں پوری. وسیم بھائی بات کرنے دیں یار، آپ کی مہربانی. اچھا جی، کہ اللہ تعالیٰ کا حدیث میں ہے بات. اور یار حدیث کو ایک منٹ چھوڑو نا بھائی. اچھا، حدیث کا ریفرنس دے رہے ہو کہ یہاں پہ آخرین منہم، تم قرآن کی آیت کا ریفرنس دے رہے ہو، حدیث کدھر سے آ گئی؟ اس پوری عبارت میں کہیں پر حدیث ہے؟ ٹھیک ہے، وہ دیکھیں نا، وہ کہہ رہے ہیں حدیث کو بھی چھوڑ دو، قرآن کو بھی چھوڑ دو، کتاب اور یار ایک منٹ ٹھہرو، باتیں نہ پکڑو، چھوڑ دو. جو بات ہو رہی ہے وہ سنو ذرا غور سے سنو. بھائی وہ صرف بات پہ کہہ رہے ہیں، پہلے کہہ رہے تھے ابن ماجہ کو بلاؤ، اس کو بھی چھوڑ دو. باتوں جی او یار اس نے بھی کچھ نہیں پٹ لینا آ کے، اس نے بھی کچھ نہیں کرنا، اس کے پاس بھی وہی پاکٹ بک کا جو تمہارے پاس ہے. لیا کیوں نہیں پھر اس کو؟ اس لیے ابن ماجہ کہہ رہا ہے میں نے جوتے سر پہ رکھے ہوئے ہیں، میں بھاگ جاؤں گا. آپ کل اچھا یار یہ بھائی جان یہ بات پوری نہیں لکھنے دیں گے، کیونکہ اتنی بڑی کفریہ عبارت آگے آ رہی ہے کہ یہ مجھے نہیں پڑھنے دیں گے. کریں کاظمی صاحب، اس کو میوٹ لگائیں جی، وسیم کو میوٹ لگائیں. وسیم بھائی، وسیم بدل دیتا ہے، کہتا جی میں نے یہ کل کی بات نہیں کرنی، میں نے آج کی کرنی. اچھا جی، سن لیا یار بات تو کمپلیٹ کرنے دو ان کو، پھر بعد میں کر لینا. تم بات تو کمپلیٹ کرنے دو جی ان کو. وسیم بھائی بات ہونے کا دو. فائدہ کیا؟ آدمی بھائی بات کمپلیٹ کریں. ایک منٹ وسیم صاحب خاموش رہے، آپ کی کتاب پڑھی جا رہی ہے، کوئی سوٹا تو نہیں مارا جا رہا. ہاں جی، وہ کہہ رہا ہے حدیث کو چھوڑ دیں، وہ کہہ رہے ہیں حدیث کو چھوڑ دیں، قرآن کو چھوڑ دیں. اور یہ اس لیے ہے کہ دوبارہ میں پڑھوں گا، اس کے خلاف ہے، چھوڑ دو. قرآن اس کے خلاف ہے، چھوڑ دو. میں کہہ رہا ہوں، میں تمہیں لے کے جا رہا ہوں واپس. اب استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. ایزی ہو جاؤ، میوٹ کرو، بات سنو. اور یہ اس لیے ہے کہ اللہ کا وعدہ تھا کہ وہ ایک دفعہ اور خاتم النبیین کو دنیا میں مبعوث کرے گا. تو اب آپ نے اللہ کا وعدہ ہمیں دکھانا ہے. اچھا، ایک تو یہ جی، جیسا کہ آیت آخرین منہم سے ظاہر ہے، پس مسیح موعود خود محمد الرسول اللہ ہے جو اشاعت اسلام کے لیے دوبارہ دنیا میں تشریف لائے ہیں. اس لیے ہمیں کسی نئے کلمے کی ضرورت نہیں. پوری عبارت پڑھنے دو. اس لیے ہمیں کسی نئے کلمے کی ضرورت نہیں. اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جگہ کوئی اور آیا ہوتا تو ضرور پیش آ جاتی. عبارت ختم. آپ کہتے ہو، آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ محمد رسول اللہ اپنے نفس نفیس کے ساتھ اس دنیا میں واپس آئے ہیں.
یہ آپ کا بندہ لکھ رہا ہے, لعنت ایکسپلین کریں جی اس کو. وہ ذلی اور بروزی کے طور پر انہوں نے کہا ہے نا, یہی سر پوری عبارت میں ذلی بروزی کا لفظ دکھا دو, ہاں جی. پوری عبارت میں ذلی بروزی کا لفظ دکھاؤ. قرآن ہے ہی مجید نہیں. میں لا جی. قرآن مجید میں اور ذلی بروزی کی طرف نہ جاؤ, ادھر لفظ دکھاؤ, ذلی کہاں لکھا ہے, بروزی کدھر لکھا ہے؟ حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ پر ਤੁਹਾਡੇ ذلی بروزی ہے نا بڑے نکلنے نے بعد وہ چ جنتی ہے. آپ یہ مجھے بتائیں کہ نبیوں پر ایمان لانا ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ وہاں پر تو انہوں نے نہیں لکھا. میں صحیح بخاری کی حدیث آپ کو پیش کر دوں گا کہ جہاں تو پھر ہمیں مسلمان کیوں مانتے ہو جب ہم تو پھر ہمیں مسلمان کیوں مانتے ہو جب ہم تمہارے نبی پہ یقین نہیں کرتے؟ تو یہ لو ایک اور پھکی لے لو. آپ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ بھی مانو تو پھر آپ کہتے ہو کہ جنت میں جاؤ گا, آپ کے عقیدہ استغفر اللہ, میں نے کب یہ کہا ہے؟ یہ میں نے کب کہا ہے؟ صحیح بخاری میں حدیث نہیں سر میں نے کوئی ایسی بات کی کہ جو بھی اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ جنت میں جائے گا. اب آپ مجھے بتائیں کہ وہاں پر قرآن مجید کی آیت بھی موجود ہے. اللہ اکبر. یہ میں نے آپ کو کوئی ایسی بات کی ہے؟ 18 میں سے جو بھی اللہ, میں نے آپ کو ایسی کوئی بات کی ہے؟ مجھے اس پہ بتاؤ. صرف جو یہاں پہ عبارت لکھی ہوئی ہے, اچھا ایک ہی جگہ سے مرزا بشیر احمد ایم اے کی کتاب سے, کتاب کا حوالہ آپ کے سامنے لگا ہوا ہے, وہ لکھ رہا ہے پس مسیح موعود خود محمد رسول اللہ ہے. مجھے یہ ایکسپلین کر دو بس. یہ تو یہی تو آپ کو بتا رہے ہیں. کوئی ذلی, کوئی بروزی, کوئی چیز نہیں. کاظمی صاحب اس نے یہ لکھا ہے کہ اس آیت کے تحت ہر ایک شخص جو موسیٰ کو مانتا ہے پر عیسیٰ کو نہیں, جو عیسیٰ کو مانتا ہے وہ محمد کو نہیں, اور جو محمد کو مانتا ہے پر مسیح موعود کو نہیں مانتا, وہ نہ صرف کافر ہے بلکہ پکا کافر ہے, دائرہ اسلام سے باہر ہے. یہ اسی کی کتاب ہے. بے شک. ہاں تو آپ کو حقیقی مسلمان کون سمجھتا ہے؟ اچھا جی, میں اب یہ حوالہ نہ لگا کے میں اب جا رہا ہوں میوٹ پہ. ابلیس دشمن. I rest my case. دو چیزیں اس میں سے ہمیں بتائیں. ایک تو قرآن کی ایسی آیت جہاں پر فیوچر کے سیغے کے ساتھ, مستقبل کے سیغے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ وہ دوبارہ مبعوث کرے گا, یہ دکھانی ہے. اور دوسرا یہ بتانا ہے مجھے کہ مسیح موعود خود رسول اللہ ہے جو اشاعت اسلام کے لیے دوبارہ دنیا میں تشریف لے کے آئے. اس سے مراد اس پورے جملے کے اندر کہیں پہ ذلی بروزی, کہیں پہ ریفلیکشن, کہیں پہ کوئی لفظ ہے تو مجھے وہ دکھا دو. اور اگر یہ بھی کہتے ہو نا کہ یہ کتاب ہی نہیں ہے, بدل گئی ہے بعد میں, تو یہ بھی کہہ سکتے ہو, کہہ دو کہ یہ کفریہ بات ہے, یا کہو کہ یہ حوالہ غلط ہے. بتاؤ مجھے, سوال ہے, جواب دو. I rest my case. ٹائم قیامت تک کے وسیم جواب دیا تھا. قیامت. لیکن جیسے کہ آپ چیزوں کو پیش کرتے ہیں درمیان میں سے اور باقی چیزوں کو چھوڑ کر یہود کی طرح ایک شیوا اپناتے ہیں, ٹھیک ہے؟ جیسے آپ ایک ایک آیت پیش کر رہے تھے پچھلی یار آیت میں نے یار سب لوگوں تو آپ کو پورا موقع وسیم بھائی, وسیم صاحب, میں آپ لیکن سب یہ انہوں لوگوں نے کیا کیا, یہاں پہ وسیم بھائی, وسیم صاحب, اور باقی چیزوں کو چھوڑ کے کہتے ہیں وسیم صاحب, میں نے آپ تمام لوگوں کی 4-6 گھنٹے یار, وسیم بھائی, وسیم بھائی ایک منٹ یار, میں نے 4 گھنٹے, ایک بونگا سا سوال میرے سے بھی سن لینا یار, میرا جواب دے دیں. ایک سب دی اجازت نال یار, تہاڈی بڑی مہربانی, میں تہاڈی 5 گھنٹے چپ کر کے گل سنی یار. میں یہ رس کہ ویسے میرا قائد نہیں ہے, لیکن میں ایک سوال, مرزا صاحب کا کوئی ذلی بروزی آ سکتا ہے؟ دیکھیں مرزا صاحب کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے بڑی ذات ہے انہی سے شروع ہونی ہے. ہم تو نہیں بھائی, میں نے جو سوال کیا وہ بتا دو بس یار. مرزا صاحب کا ذلی بروزی آ سکتا ہے کوئی کہ نہیں؟ اگر کوئی آئے گا, کوئی آ کے دعویٰ کرے گا تو اس کو دیکھ لیں گے. وہاں پہ انہوں نے کہیں لکھا تو نہیں ہوا کہ میرے بروز نے آنا تو اس کو ماننا. تو محمد قاسم نے کیا, کیوں نہیں مانتے؟ محمد قاسم نے کیا دعویٰ, جاؤ. گوہر شاہی نے کیا, جاؤ. اور کس نے کیا؟ وہ انہوں نے اس نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہوا ہے محمد قاسم نے, اس سے جا کے کیوں نہیں بات کرتے؟ انہوں نے کس کا اگر تمہارے میں ارجائے نبوت جاری ہے تو اس کے بعد اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو اسے کس موضوع پہ آپ پرکھو گے؟ کرے گا جب کوئی آگے کرے گا نا. اور کر دیا اس نے, تیری زندگی میں کیا ہوا ہے وسیم, تجھے شرم آنی چاہیے. تیری زندگی میں دعویٰ کر دیا اس نے مہدی ہونے کا. سن لو, مجھ سے گن لو, تمہاری اپنی جماعت کے اندر ناصر سلطانی نے کیا ہوا ہے, اور وہ زاہد جو ہے جرمنی والا اس نے کیا ہوا ہے, ایک وہ ملیشیا میں بیٹھا ہوا اس کا کیا نام ہے اس نے کیا ہوا ہے, ایک احمد عیسیٰ جرمنی میں بیٹھا ہوا ہے اس نے کیا ہوا ہے. کتنے لوگ آپ کو گنوائے ہم, وہ آپ کا جمبا جو ہے اس نے کیا ہوا ہے, اور کتنے لوگ چاہیے آپ کو؟ ایک وہ اسد شاہ جو مر گیا ہے اس نے بھی کیا تھا, ایک وہ طاہر نسیم جو مر گیا ہے اس نے بھی کیا تھا. 16 نبی ہیں جنہوں نے کیا ہوا ہے, 16. یہ کوئی ثابت تو کریں نا ہماری جماعت سے کیا تعلق ہے. جمبا نے کہاں نبوت کا دعویٰ کیا وہ مجھے دکھائیں یار. 10 نا مرزا صاحب کا کوئی ذلی بروزی آ سکتا ہے کہ نہیں؟ یس نو کہہ یار.
ज़ाहद आप बताते हैं कि वो कहाँ से भाई वो आएगा वसीम भाई, वसीम भाई, दावा नबूवत वो पेश वसीम करे। भाई सवाल है, सवाल है पर माहर हो लेने नहीं से कोई भाई, फर्क सवाल ये बताएं कि मिर्जा साहब का जिली बुरूजी आ सकता है कि नहीं आगे, ये बताएं। अभी यस नो। यही बात मैंने कही, क्या मिर्जा साहब ने कहीं लिखा है कि मेरा जिली और बरूजी आएगा? तो फिर यही तो हम कुरान में बता रहे हैं, कहाँ लिखा कुरान है? मजीद में तो चलो उन्होंने लिखा होगा ना, सूरह जुमा की नहीं बात नहीं आपको पेश कहीं भी नहीं पेश किया आपने। ਦੱਸ ਹੁਣ। 4 घंटे हो गए आप आपको सवाल किया हुआ है। ਮਿਨਹੁਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੂੰ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ हाँ जी, ਤੇ और भाई उसी के अंदर तो सारा कुछ कहते हैं कि मुस्तकबिल का सीगा दिखा दें, बात खत्म हो जाएगी। हम तो आपसे ये मुतालबा कर रहे हैं। मिनहुम की जो तशरीह उसके लिए माजी का सीगा आया है, माजी का सीगा आया है, हाँ जी, तो हजरत सलमान फारसी के कंधे पे जो ईमान उठ जाएगा, माजी क्या का नबी सीगा वसल्लम आया के दौर है, में- उसमें माजी का मेरी कुरान बात पाक में सुने, सीगा क्या- आया है। क्या मेरी बात सुने, क्या अच्छा एक नबी मिनट जी वसल्लम के सलमान, ज़माने एक में मिनट जी, एक कुरान मिनट उठ गया? इनकी अगली सुने, एक मिनट अगली सुने, एक मिनट जी बताएं सलमान फारसी को क्या हाँ जी, बताएं। क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ईमान उठ गया था सुरैया पे? और भाई जो आप हाँ, मुझे बताएं। बताएं जो बताने वाले हैं, नहीं, मुझसे नहीं, आप सवाल ना मुझे करें। बताएं क्या फिर? नहीं नहीं फिर मुझसे आखिरी सवाल में ना से- करें देखो आप। ना, अभी आप बताएं क्या बताने वाले हैं। आप सवेर से लगे हुए हैं सलमान फारसी, सलमान फारसी, आप बताएं क्या है। हाँ जी, नबी साबित करीम साबित करें ना, क्या बासत का साबित करना उन्होंने चाहते बात हैं? बताएं। उस आयत का पूरी बात तर्जुमे मैंने काज़मी साहब ने खुद पढ़ा के उनसे भी मिलेंगे जो आखरीन है, ठीक है ना? और नहीं आखरीन कहाँ के लिखा दूसरे अब नाम- मिलेंगे यार, मेरे पे झूठ बांध रहा है बंदा, जिंदा बैठा है तेरे सामने, उस पे झूठ बांध रहा है भाई। किसी ने नीचे सारे लिखे मिलेंगे। अल्लाह अकबर, हम तो बिल्कुल उसके मुखालिफ बात कर रहे हैं। तर्जुमा कर दिया मैंने। ये ऐसे झूठ बोल के आपने साबित करना है ना, तो बस करें फिर, काफी हो गया। ज़िया रसूल साहब इनको कोई तर्जुमा करें, मैं इन्हीं के तर्जुमे के ऊपर जो और यार कितनी बार तर्जुमा करें। वाखरीन मिनहुम, और आखरीन के लिए लम्मा जल हकूबिहिम, जो इनसे अभी नहीं मिले। हाँ जी, हाँ जी बताएं। इनसे नहीं मिले वो, ये नबी उनके लिए भी है ना, जो इनसे नहीं मिले उनसे भी मिले। हाँ जी, बिल्कुल है, उनके लिए भी है। इनके लिए भी बिल्कुल। भेजा क्या उनसे मिलना है? ये अपनी तरफ से ना डालो, ये किधर लिखा है उनसे मिलना है? मिलना नहीं है, हिदायत की बात है, हिकमत की बात है, आयतें मिलना हैं नहीं जो है, पढ़ वहां के लिखा हुआ है जो अभी उनसे नहीं मिले उनके लिए भी यही रसूल मबूस फरमाए गए हैं। तो भाई मेरे, वो तो दूसरी आयत में ये तो जिक्र हो चुका, नबी वसल्लम आखिरत में है, यहाँ पे स्पेसिफाई करने की क्या जरूरत है कि वो आखरीन के लिए भी हैं? किसी को समझ ओ आता भाई, है कि इसलिए अल्लाह मिर्जा ताला साहब, एक बार ये फरमा दे कुरान कुरान में पाक कितने में जो निकाल बात ली तो तो आपकी दूसरी अपनी बात मर्जी है। फरमाए हैं। न किसी को ला नहीं समझ ये आती नवी है। मंतक सुन लो कि अल्लाह ताला ओ की यार, बात एक बार कुरान पाक में फरमा दे, दूसरी ओ बात ना भाई, फरमाए। ओ भाई मिर्जा साहब को, मिर्जा साहब 1908 में फौत हुए हैं, अब वो मुझसे क्यों नहीं मिले? कौन से? तो उनका जिक्र मिर्जा आपने गुलाम किया। अहमद कादियानी 1908 में फौत हो गए हैं। अच्छा जी, आप इनसे लोगों आगे से मिले आगे ना, आगे आखरीन सुन के ले, लोगों बात से खत्म मिले करे। थे देखिए ना। जहाँ जुमे का टाइम होने वाला है, इनकी अगली बात सुन लेना, वो जो कटी कट्टा निकालना चलो है इन्होंने, यार, अगली ठीक बात है यार, बयान चलो। करें जी, बात खत्म करें जी। जैसे ओके जी, अल्लाह हाफिज़। नहीं एक मिनट ठहरो, एक मिनट ठहरो ज़िया रसूल साहब, ਇਹਨੂੰ बड़ा ਜ਼ੋਮ है ना उस हदीस ਦਾ, ਉਹ ਹਦੀਸ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀ ਜੇ ਹੁਣ, ਉਹ ਮੈਂ ਹਦੀਸ ਲਾਣ ਲੱਗਾ ਜੇ ਤੇ ਇਹਨੇ आदमी ਜਿਹੜਾ साहब आपने ਤर्जुमा पढ़नी ਕੀਤਾ नहीं है, आपने पढ़नी नहीं, आपने मैं नहीं, इसी को हदीस कहूंगा नहीं लगानी। पढ़ेगा। अभी नहीं अच्छा, लगानी चलें। आदमी साहब, एक मिनट रुके, एक मिनट रुके, ना लगाएं अभी, पहले इनकी सुन लें ये क्या कहते हैं, बाद में लगाएंगे आप, एक बार ना हाँ लगाएं। यार, सही कह रहे हैं मिर्जा की साहब। आयत नंबर 2 में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा है कि ना, उम्मीन नबी जो भेजा गया है, ठीक है ना, बासत हुई है उसकी, ठीक है ना, इसी तरह वो आखरीन के लिए भी आएंगे, ठीक है। आएंगे किस लफ्ज का तर्जुमा? जो आखरीन लोग कौन है? यही तो हजरत सलमान फारसी ने जब कंधे पे हाथ तो रखा उनमें पूछा गया। आएंगे किस लफ्ज का तर्जुमा है? तो भाई मिले। अच्छा, मेरी मेरी ये बात सुने कि पहले को लिए वहां आए कि तो नहीं आए? एक ही लफ्ज है, पहलू के मबूस लिए। फरमा दिए गए, मबूस होंगे ये दिखा दें और आप। यही, और फिर यही लिखा, यही नबी आखरीन के जो अभी इनसे नहीं मिले, ठीक है, हाँ जी यानी बिल्कुल। दोबारा उनकी बासत का जिक्र हो रहा है यहाँ तो पे। भाई दोबारा सिंपल कहाँ सीधी सी फरमा बात है। दिया कि जिनकी बेइज्जत हो चुकी यही उनके लिए भी है। आखरीन के लिए भी हैं, उनके लिए भी हैं, ये वाज़ेह हाँ हो जी, रहा है। अवलीन और आखिरीन सब के लिए हैं। ओ भाई मेरे, वो तो कुरान मजीद भरा पड़ा है उनके लिए, यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि वो अवलीन के लिए भी और आखरीन के लिए भी हैं। जी हाँ, बिल्कुल, यही बताया जा रहा है। उनकी बिल्कुल। बासत के साथ ही सबको पता है कि वो सबके लिए हैं, वो तमाम जहानों के लिए हैं। हाँ तो यहाँ भी उसमें वही तो लिखा शक हुआ है। किसी को नहीं, या तो बिल्कुल बात यही तो हम कह रहे हैं। देखिए, कुरान मजीद वो बात करता है जिसके ऊपर किसी को शक हो, ठीक है ना। इस बात के ऊपर तो किसी ने शक किया ही नहीं कि आने बाद वाले जमाने के लिए आप हैं कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जिक्र करने का मकसद ये क्या है? मंतक किधर से लाए हो? ये जो कुरान पे बहतान दोबारा बांध रहे हो, ये कौन से मंतक ला रहे कुरान हो मजीद की वसीम? कोई आयत एक ऐसी बता दें कि जो बिला वजह अल्लाह ताला बयान करता है, ठीक है। इन्नलिल्लाह। यार यहाँ हमने पे इस कब आयत कहा में बिला वजह? आपको- अल्लाह ताला आपको इसमें ये- यही तो बयान फरमा रहा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव्वलीन और आखिरीन के लिए। आपसे एक ही सवाल है, आप दिखा दें कि अवलीन मबूस में जाहिर हुए ना, कोई लफ्ज़ है। अवलीन में जाहिर हुए तो आखरीन में क्यों नहीं होंगे? यही तो मैं आपसे मनी आप ना प्योरिया हो गए बेटा। ज़ाहिर, अल्लाह ताला ने तो खुद अल्लाह बताया है कि वो हो चुके हैं।
آپ کہہ رہے ہیں کہ ہوں گے تو آپ نے دکھانا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے وہ ہے ہو چکے, آپ نے دکھانا ہے کہ ہوں گے. یہ آپ کی ذمہ داری, آپ کا کلیم ہے نا. اولین میں آئے نا, تو بعد میں والوں کے لیے بھی آنا ہے کہ نہیں آنا, جو بھی ان سے ملے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا بعد والوں کے لیے بھی مبعوث ہو چکے, یہ اللہ نے فرمایا قرآن میں. نہیں, آپ بعد نے والوں کے دکھانا لیے ہے کہ کہاں بعد سے میں یہ اللہ مبعوث ہوں بھائی گے. میرے, یہ تو اللہ تعالیٰ نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا, یہ تو تمام بنی آدمہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے جگہ اللہ جگہ تعالیٰ بتا نے دیا اس ہے. آیت میں یہ فرمایا ہے کہ وہ آخرین کے لیے بھی مبعوث ہو چکے ہیں. آپ کہتے ہیں ہوں گے تو ہوں گے, آپ دکھا دیں گا. آخرین میں مبعوث ہو چکے ہیں. پھر حضرت سلمان فارسی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر یہ کیا بتایا ہے کہ جب ایمان ثریا پر بھی چلا جائے گا, انہی میں سے چند اشخاص یا ایک شخص جو ہے نا وہ اس کی بحالی کرے گا. ہاں جی بتائیں. تو اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے یہی مراد ہے نا کہ یہ دیکھیں ساری چیزوں لڑیوں کو جب آپ آ کے جوڑتے ہیں نا, دجال کے آنے کا ذکر کب ہے کہ جب دین کمزور ہو جائے گا. پھر دجال چلا گیا یار. ایک منٹ, اب بات سنو نا, اب بات سنو, ساری چیزوں کو ایک لا کے منٹ بات سنو, بات سنو جی, بات سنو, بات سنو, ایک منٹ جی, ایک منٹ جی, بات سنو, بات سنو, ایک منٹ, ایک منٹ, ایک منٹ, ایک منٹ, بات سنو, بات سنو. آپ وہ حدیث شریف جو بیان کر رہے ہیں نا وہ بتا دیں ساری, کیا لکھا ہوا ہے, کیا واقعہ ہے وہ. ہاں جی, آخرین سے ملنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پوچھا گیا نا صحابہ کی طرف سے, یہ آخرین کون ہے جن سے آپ کے ملنے کا ذکر ہو رہا ہے, ٹھیک ہے نا, تو انہوں چلیں جی, نے ایک منٹ جی, ایک منٹ, ایک منٹ. وسیم صاحب بات ختم ہو گئی ہے. آپ حدیث شریف سے یہ دکھا دیں کہ صحابہ کرام نے یہ پوچھا کہ آخرین کون ہے جن سے آپ کے ملنے کا ذکر ہے. یہ بات حدیث شریف سے دکھا دیں, ساری بات ختم, میں آپ کی بات مان لوں گا. چلیں پہلوں سے تو وہ ملے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا بھائی. جو حدیث جو آپ نے ہر حدیث جگہ لے پہ کے جھوٹ آؤ بول رہے ہیں, یار, ہر جگہ پہ جھوٹ. ہر جگہ آپ جھوٹ حدیث بولے شریف جا رہے آپ ہو, نے کہا سراسر کہ جھوٹ صحابہ کرام نے پوچھا کہ آخرین کون لوگ ہیں جن سے آپ ملیں گے. یہ بات دکھا دیں حدیث شریف سے. حدیث نکال کے جو آگے لا دیں آپ بتا رہے کی ہیں کوئی کہ چیز اس پیش, آیت کا آپ پھر مطلب بتا یہ دیں ہے کہ وہ یہ سوال پہ سوال. امین کے لیے بھی ہے, آپ اور قرآن آخرین کے لیے پاک بھی سے ہے. نہیں دکھا سکے کہ مبعوث ہوں گے. حدیث اب آپ نے حدیث پہ جھوٹ بول دیا. آپ حدیث سے دکھا دیں کہاں صحابہ کرام نے یہ فرمایا کہ جن سے آپ ملیں گے. دیکھیں آپ کے کہنے کا مطلب ہے اس آیت کا صرف اتنا مطلب ہے کہ یہ آیت نہیں, آپ نے آپ حدیث پھر بولا ہے آیت کی طرف آ بھائی. گئے. دیکھا نا, یہ قادیانیت ہے. نہیں, آیت یہ پہ تھے تو قادیانیت چلے نہیں. جاتے حدیث پہ. اب میں حدیث پہ گیا, آپ کہتے ہیں جھوٹ آیت پہ مت ہیں. بولو وسیم, مجھے جھوٹ مت آپ نے جو بولو. جھوٹ بولا ہے کہ آخرین صحابہ کرام نے یہ فرمایا کہ وہ کون لوگ ہیں جن سے آپ ملیں گے, یہ حدیث شریف سے دکھا دیں. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرین کو کن کو کہا ہے, پہلے تو آپ یہ بتائیں نا, آپ کو کہا ہے نا. ہم نے کہہ دیا وہ آخرین کا مطلب ہے ان کے علاوہ اور. ہاں جی, ان کے آخر کا جو مطلب ہے نا وہ دیا. قرآن میں عربی کے اندر آخر کا مطلب جو آتا ہے نا, آخر کا مطلب وہ آخروں وہ والا آخری نہیں ہوتا. لاسٹ اس کا والا مطلب آخری ہوتا ہے نہیں اس ہوتا, کے سیکنڈ علاوہ والا کوئی ہوتا ہے. اور, اس کے علاوہ کوئی اور اس کا مطلب ہوتا ہے. وہی وہ آخر جب آتا ہے نا تو کہتے ہیں اس معاملے کے علاوہ کوئی معاملہ. ہاں جی, ہاں جی. ہاں, تو آپ وہاں پر بھی ترجمہ غلط کر رہے ہیں. اب آپ کے ترجمے کو بھی لے کے چلے, آپ پھر بھی ثابت نہیں کر سکتے ہو. ہر جگہ پہ فرق اب حدیث پہ بتاؤ, آپ ضیاء بھائی کی حدیث بات پہ کا جو میں جواب نے دو. پوچھا ہے حدیث شریف میں دے دکھا دیں کہ صحابہ کرام نے کہاں فرمایا کہ جن سے آپ ملیں گے. دکھائیں. اچھا پہلے آپ مجھے یہ بتائیں, آخرین سے مراد آپ اپنے پھر سوال بھائی پھر وہی بات, آپ نے ایک جھوٹ بولا ہے, اس کا ثبوت دے دیں بس. جھوٹ نہیں. دیکھیں جب میں آپ کو کوئی چیز جھوٹ نہیں ہے تو ثبوت دے دینا. ادھر گھوڑی ادھر میدان. آپ اس روایت میں سے یہ دکھا دیں کہ صحابہ کرام نے یہ فرمایا ہو کہ وہ کون لوگ ہیں جن سے آپ دوبارہ ملیں گے. یہ الفاظ دکھا دیں مجھے, کہاں لکھا ہوا حدیث شریف میں یہ بات. کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ذکر ہی آخرین میں ہو رہا ہے, تو وہ یہی پوچھیں گے بھی آخرین لوگ کون ہیں. تو دکھا دیں نا, کہاں پوچھا, دکھا مت دیں. کرو یار, حدیث تو کی بات دکھا کی دیں ہے, نا کہ یہ حدیث پوچھا ہے, دکھا دیں, دکھا دیں. ہاں جی, تم نے حدیث بولا حدیث میں میں نے آپ سے اسی وجہ سے دکھا دیں. آخرین او کون بھائی لوگ ہیں. دکھا دیں, کہاں لکھا ہوا ہے, دکھا دیں. نہیں, آپ مجھے یہ بتائیں آخرین کون لوگ ہیں. پھر الٹا سوال وہی یار, بات آ تمہارا گئی. سارا کا سارا. یا وسیم صاحب کہہ دو کہ میں نے جھوٹ بولا ہے, نہیں جھوٹ یا کہہ دو میں نے جھوٹ بولا ہے, یا دکھا دیں. بھائی ایک منٹ میوٹ کرو, ضیاء صاحب نو کرن دیو, میوٹ کر لیں. ضیاء صاحب کر رہے ہیں, بہت اچھے طریقے نال کر رہے ہیں. آپ نے خود اس چیز کو مانا کہ پہلے لوگوں میں امیوں میں ان کی باسط ہوئی, ان کو بھیجا گیا. اب میں نے آپ کو کہا آخرین میں بھی ان کو بھیجا جائے گا. پھر آپ نے کہا نہیں بھیج دیے گئے ہیں. یہی کہا نا کہ آخرین, میں نے کہا بھیج دیے گئے ہیں, دوبارہ نہیں بھیجے جائیں گے. کیسے؟ اب دیکھو نا آخرین, میں نے کہا نا, آپ میری طرف کیوں تھوپ رہے ہیں. میں نے کب کہا کہ دوبارہ بھیجے جائیں گے. نہیں, آخرین سے آپ نے تب کیا کہا تھا کہ آپ لوگ ہیں, ہم لوگ ہیں, مطلب ٹھیک ہے نا. آخرین سے آپ یہ مراد لے رہے ہیں نا. اب پہلوں کی طرف تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے ہیں, تو بعد والوں کے لیے نہیں بھیجے جائیں گے, مجھے بتائیں. بھی بھیجے گئے ہیں.
नहीं नहीं भी बाद वालों के भेजे लिए गए भी अल्लाह नहीं ताला कुरान में नहीं कहता है कि बाद वालों के लिए भी मैंने इन्हीं को मबूस फरमाया है। हाँ तो इन्हीं को माबूस फरमाया है ना, तो इन्हीं से मुराद जी क्या वो माबूस हुए हैं हमारे दरमियान फिर? हाँ बिल्कुल हुए हैं। कैसे माबूस हुए हैं बताएं? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस हुए तो हम उनकी उम्मत है। नहीं 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 नहीं, बाद वालों के लिए कैसे माबूस हुए हैं ना वो? बाद वालों के लिए अल्लाह ताला ने मबूस ऑलरेडी फरमा दिया है। नहीं 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 यही तो नहीं, अल्लाह ताला माबूस बयान फरमा रहा है। नहीं ना, यही तो नबी करीम सल्लम यही तो बता रहे हैं, ठीक है ना, कि वो आखरीन में भी जो है ना उनकी यार वसीम मैं इस गल ਨੂੰ क्यों नहीं समझ आ रही। 1908 में मिर्जा साहब फौत हो गए, अब हम अभी भी आखरीन हैं, अभी भी हैं। मुझसे मिर्जा साहब क्यों नहीं मिले आके? ਇੱਥੇ ਕਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ अच्छा ਘਰ ਆ एक ही ਕੇ दफा आना था ना, और बार बार तो नहीं ना चल मन्नी ना प्यो दिया पुत्ता। आखरीन में एक ही दफा आने का जिक्र है तो ना। वही तो वो भी बता रहे हैं। अच्छा वो आखिरी आप उस हदीस का क्या करते हो जिसमें आप ये मानी बयान कर रहे हो कि आखिरीन के लिए भी मबूस होंगे, आप उसका क्या मानी करते हो? हाँ जी, तो एक दफा हो गया ना, कोई बार बार माबूस होने का तो जिक्र है, यही एक तो दफा हम होने आपको का जिक्र समझा रहे हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफा हो गए तो बार बार क्यों कह रहे हो कि होंगे? मिर्जे की ऐसे बारी लग है तो कह रहे हो कि गए। बार बार नहीं होना, देखो, और देखो, नबी देखो, करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारी है तो कह देते हैं बार बार होंगे। नहीं नहीं हद नहीं हो गई? नबी नहीं नहीं बार बार नबी पाक लिख के बना सल्लल्लाहु ले, अलैहि वसल्लम मबूस हद से हुए, गया, असूल हद एक से गया। रहेगा, असूल एक नबी रहेगा। पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस हुए, हम कह रहे हैं कि वो जिंदाबाद, अवलीन के लिए भी हैं, जिंदाबाद। आखिरीन के लिए भी आप मानने को तैयार नहीं, और मिर्जा कादियानी के लिए आप कह रहे हैं कि वो अवलीन आखिरीन दोनों के लिए हैं। ओ लाजवाब। नहीं नहीं, मिर्जा साहब के लिए क्या है कि नबी करीम मिर्जा साहब सल्लल्लाहु देखे, अलैहि वसल्लम यार, ने मिर्जा बस एक मिनट जी, किया। मिर्जा साहब के जो जमाने वाले वो हो गए अवलीन, हम हो गए आखिरीन जो उनके बाद में आए हैं। नहीं नहीं, वो अब मिर्जा आप साहब कह ने रहे हैं कि कहा है मिर्जा कि साहब मेरे जमाने अवलीन वाले और अवलीन आखिरीन हैं। दोनों के लिए हो गए। नहीं, मिर्जा साहब अब ने- मैं और जिया साहब वेट कर रहे हैं, आप मिर्जा साहब को कॉल करें, सुने नहीं, नहीं, मेरी बात सुने, नहीं, नहीं, आप मिर्जा साहब को कॉल करें, भाई कॉल करें मिर्जा मान साहब गया को, जी। और हम वेट कर रहे हैं मिर्जा साहब से वसीम मान गया मुलाकात जी। के लिए। अब वो जो है ना मतलब क्यों नहीं मिलने आए मुझे, ਸਿਆ ਭਾਈ ਉਹ इतनी ਜਰਾ देर से मैं ਫੋਨ इंतजार कर ਨੰਬਰ रहा हूँ। ਪਹਾੜਾ ਸੁਣਾਣਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰबर ਕੀ ਹੈਗਾ अब ਮਿਰਜ਼ਾ मैं ਸਾਹਿਬ ਦਾ आपको सामने वसीम की जुबानी मनवाने लगा हूँ। वसीम साहब मुझे बताएं कि आज उस हदीस का क्या मतलब है? क्या चीज उसका मतलब वो जो ये आप है- हदीस बयान कर रहे हैं सलमान फारसी वाली, सुरैया का, आज हाँ जी। उसका क्या मतलब है? हाँ जी, वो जब ईमान सुरैया पर उठाया जाएगा, और दूसरी तरफ ये है कि जब दज्जाल तब आएगा जब दीन कमज़ोर हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर वो जगह पर मुसलमानों की हालतों का जिक्र करते हुए बताया, फिर इमाम की ज़रूरत का बताया, सारी चीज़ें बताकर, और फिर महदी का वजूद, इब्ने मरीम का वजूद जिसको हम कहते हैं, इसके मुताबिक वो एक ही वजूद है, ठीक है ना। उस हदीस उसके का आने आज जिक्र क्या है, हाँ मतलब जी। लेते हो? उस हदीस का आज क्या करते हो? हाँ, मतलब उस वक्त देखें, ईमान आपके जब बकौल सुरैया पर जिसमें ये उठाया है जाना कि था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा मबूस होंगे, वो हदीस आज भी मौजूद है, आज उसका मतलब क्या लेते हो? तो एक दफा तो हो गया ना, तो बात एक ही एक दफा की हो बात गया है ना, तो यानी कि आखिरीन उसका में ये आने मुराद का है कि जिक्र एक ही दफा हो गया ना। दोबारा नहीं होना, यही मुराद है। नहीं, आखिर यहाँ पे एक और आयत होती हम मर गए हैं, अब हम मर गए हैं, क़यामत आ चुकी है, हम आखरीना मिनहुम में नहीं है, हम नहीं है आखरीना मिनहुम में। भाई आप तो तक हमारे साथ ज्यादती क्यों की मिर्जा साहब ने, क्यों 1908 में मर गए गाली वो? ना दो यार, हाँ जी। टाइगर नहीं, गाली ना अच्छा, दो जब हम इनको कह रहे हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस हो गए हैं, वो ही गाली ना अवलीन दो के लिए यार। हैं, वही आखिरीन के लिए, ये मानने को तैयार नहीं। और अब यार मिर्जा मैं- साहब ये कह रहे हैं कि वो हो चुके हैं, अब और कहाँ होना? मैं आप वो जिया साहब, अवलीन मैं जिया साहब मैं और आप नहर वाले पुल पे खड़े हुए हैं, मिर्जा साहब मिलने क्यों नहीं आ रहे? मिर्जा साहब ने कहीं लिखा है सानू नहर वाले पुल ते बुला के मिर्जा साहब क्यों नहीं आ रहे, दसो। अच्छा, आपके नजदीक कुरान मजीद की आयत का मिसदाक क्या है जी, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि या वसल्लम अल्लाह भाई, आप एक मिनट, यार, हमारे मन्नी नजदीक ना यही पे हो मिसदाक जाए। है कि मिसदाक हमारे नजदीक यही है जो अल्लाह ताला ने बयान फरमाया। अल्लाह ताला ने फरमाया, क्या एक ही है? लफ्ज बयान फरमाया, बासा, उसी को लागू किया अल्लाह ताला ने अवलीन और आखिरीन के लिए। वो अल्लाह ताला आखिरीन- फरमाता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि आखिरीन की वसल्लम जो- मबूस अच्छा, किया गया ना आखिरीन जिनको, के- वही अवलीन और आखिरीन के लिए है। वो आखरीन की जो हदीस है वो पेश करके बताएं जरा। अल्लाह दी कसम आप एक बता दें, लफ्ज एक एक खबर मिनट है, जी, एक लफ्ज एक मिनट जी, एक मिनट, वो आखिरीन अब की हदीस फर्ज आप मुहाल पेश नहीं करना, अब वो फर्ज मुहाल नहीं नहीं मैं अपना करता ना, बताएं। वो ना ना आखिरीन ना की- ना, ये अब देखे ना ये, अच्छा जी मैं लगा दूं हदीस, इजाजत है तो? हाँ जी, चले लगा दें जी। अब वो फर्ज चले जी, अब वो वक्त आ गया है, अब वो वक्त दोस्तों बुजुर्गों भाइयों, एक मिनट वसीम ठहरो जरा, तुम्हारे सामने हदीस आने लगी है, ठहर जा मेरे भाई, एक सेकंड। मनी ना वसीम पियो दिया पुता
वसीम साहब आप यार ज़हन में जमात तो खराब आप- कराओ। एक मिनट जी, वसीम साहब ज़हन में रखना, बाकी अब आप भी ज़हन में रखें कि वसीम साहब अब कुरान पाक से ये मतलब अपना गढ़ के आए हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा भी मबूस होंगे, ये मतलब गढ़ के आए हैं। अब हदीस शरीफ निकालें जरा। नहीं नहीं, घड़ के क्या है आपके नज़दीक? इनका मतलब ये है कि नबी वसल्लम जी उनके लिए भी थे और बाद के लिए। लो जी आयत लें जी भाई, आपकी आपकी ख्वाहिश पूरी कर दी है। और देखिए ना भाई के पास हाईलाइटेड चीजें पड़ी हुई हैं, ये कैसी बात है? अल्लाह ताला को पढ़े जी। ये कैसी बात है? ये तो यार मेरी करामत भी मानो ना यार, मुझे भी बुजुर्ग मान लो, मुझे भी बुजुर्ग मान लो, करामत चेक करो तुम मेरी, करामत देखो मेरी। बाबा चलें बाबा वसीम साहब काज़मी पढ़े। एवेक जरा बुखारी 4897, चल पढ़ूं, शाबाश पढ़ के बखा, साबित कर। हाँ जी पढ़े ना। अब आपने अपना नजरिया बताना है, मैंने तो बता दिया, आपने उसको हाँ नहीं जी, माना। हम ही बता देंगे, आप बताएं, आप पढ़े जरा क्या लिखा हुआ है। आप तो हर जगह फर्जे मुहाल करके जब फंस जाते हैं कहते ओ हैं कि मैंने यार तो फर्ज फर्जे किया था। मुहाल, ओ फिर यार क्या अभी- इसको हो अभी- गया है? अभी इनको हर कितना चीज चाह में- चढ़ा हुआ है कि मिर्जे को फर्जे मुहाल के तौर पे कहा है आपने, नहीं, कैसी नहीं, कौम नहीं, है। नहीं, हर जगह पर आप वो फर्ज भी करते पैरी हैं। पै गए। कुरान की कोई एक चीज अच्छा ये जिसका बताएं आपने यार, ये तर्जुमा बताओ किया हो। टाइम थोड़ा, ये पढ़ लो आप, रिवायत पढ़ो, शाबाश। क्या लिखा हुआ है? हाँ जी, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे कि सूरह जुम्मा की आयतें नाज़िल हुईं। व आखरीन मिनहुम लम्मा यलकूबहिम, क्या क्या है ये बड़ा कीजिएगा पहली क्या है? बारी कुरान की आयत पढ़ी है इन्होंने, पहली बारी वलम्मा यलकूबिहिम, पहली बारी पढ़ी, पहली बारी। चले मैं अपने पास से इधर से पढ़ लेता हूँ। ऐसी पढ़ पढ़ के कोई 50 बारी सुनाती है। फिर भी नहीं पढ़ेगी जी सही। भाई हाँ जी, आगे क्या लिखा हुआ है जी? लम्मा आगे यल हकूबहिम वाहो अजीजुल हकीम। ठीक है, तो यहाँ पर ये आयत दूसरों के लिए भी जो इनमें शामिल नहीं हुए हैं। ठीक है, तो जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान किया या रसूलुल्लाह ये दूसरे कौन लोग हैं, जो वसल्लम ने कोई जवाब नहीं दिया। आखिर यही सवाल 3 मरतबा हुआ। ठीक है, मजलिस में सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मौजूद थे। आन वसल्लम ने इन पर हाथ रख कर फरमाया अगर ईमान सुरैया पर भी होगा तब भी इन लोगों यानी फ़ारस वालों में से इस तक पहुंच जाएंगे, या यूँ फरमाया कि एक आदमी इन लोगों में से इस तक पहुंच जाएगा। हाँ जी, ठीक है। हाँ हाँ जी, जी। तो देख ले अब बताएं यहाँ इसमें पर कहाँ तो लिखा हुआ है कि हाँ जी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी दोबारा आएंगे? करीम अच्छा ये चीज़ तो आपने मानी ना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखरीन का जिक्र वो कर रहे हैं जो उनके दौर में मौजूद नहीं थे। ठीक है ना, ये चीज़ वाज़ेह होगी। हाँ, होगी कि नहीं होगी? आगे ये भी फर्ज हाँ। महाल ही है, ये फर्ज नहीं नहीं, महाल है कि ऐसा ही है, पक्की है? आखिरीन से मुराद वही है जो उस वक्त मौजूद नहीं थे। आगे चले। हाँ जी, तो उस वक़्त में ही जब ईमान सुरैया पर उठना था, अगर ईमान सुरैया पर भी चला गया, ठीक है, तो फिर किसके आने की पेशनगोइयाँ की गई हैं? ठीक है, जब दीन बताओ। कमज़ोर हो जाएगा, ठीक वो है। ये कहाँ लिखा हुआ है इसमें दीन कमजोर हो जाएगा और भाई किसके आने की मेरे पीछे यहाँ गोइयां? पर क्या है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि आपने वसल्लम ये एक साबित करना है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा आना है। आप कुरान से ये मतलब लेके आए हैं यहाँ पे। हाँ जी, यहाँ अब इस पर हदीस यही में कहाँ मतलब है ना, लिखा हुआ है? जब नबी पाक ईमान तो किसी और सुरैया की पर तरफ इशारा कर रहे हैं। नबी पाक तो नहीं फरमा रहा कि मैंने आना है दोबारा। हाँ जी, तो हज़रत सलमान फारसी के कंधे पे फारस में से यानी कि वही लोग उठेंगे जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयत पढ़कर सुनाई और उनको पाक किया। हाँ हज़रत सलमान फारसी के कंधे पर हाथ रखकर बताया इनमें से चंद खास या एक ऐसा होगा, ठीक है ना, एक ऐसा होगा, ठीक है ना, जो ऐसे ही काम करेगा। ठीक है, अच्छा, तो अल्लाह ताला तो ने इसमें भेज ये दिया कहाँ अपना। लिखा हुआ? आप अपना मुद्दा निकाल लें, कहाँ लिखा हुआ है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं दोबारा आऊंगा, या सहाबा कराम ने पूछा हो कि आप भाई किन में मेरे दोबारा आएंगे? वही काम इसी वजह से तो हम कहते हैं कि जिल के तौर पर इस आएगा। हदीस ये शरीफ में उसका कहीं लिखा आना हुआ है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा आएंगे? उसका आना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही बताया है ना, वही काम जो काम पहले किया गया वही काम और दूसरों नहीं के लिए नहीं, आगे वो काम का नहीं करेगा। पूछा, जो आप कुरान पाक से मतलब लेके आए हैं वो दिखाएं, इस हदीस में कहाँ लिखा हुआ तो है? भाई मेरे जिल का काम क्या होता है? जो पहले काम अल्लाह हुआ है जिल्लाल वही चला काम गया। आगे करना है। और चल जिल यहाँ भी इस बता हदीस दे, में लिखा जिल हुआ है, साबित कर दे थे किथे इस जिल हदीस में चले भी लिखा हुआ है है, ना, इस हदीस इस में क्या हदीस में लिखा हुआ है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा आएंगे। ये पहले बयान इस बता दें। हदीस में नबी करीम सल्लम ने अपनी दूसरी बासत किस तरह होती है कि जिल ने आना है। अब नबी और करीम भाई सल्लम ना जाते तो खुद तो यहाँ नहीं ना किसी आने वाले, बासत का जिक्र जो है, वफात ना पा किसी गए वो तो नबी नहीं का आ जिक्र सकता। है,
ना किसी बासत का जिक्र है, ना किसी नबी का जिक्र है, ना यहाँ अच्छा, ये ये जिक्र है क्या कि नबी जिक्र है? पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर दोबारा ईमान आना है। सुरैया पर भी चला गया, ये सलमान फारस पे कंधे पे हाथ रखकर कहा कि अगर ईमान सुरैया पर भी चला गया, इनमें से चंद अशखास या एक, चला यूं गया कहा किस कि लफ्ज का एक मानी है? आदमी, चला गया किस लफ्ज का मानी है? अगर ईमान सुरैया पर भी होगा, मतलब चला गया यही ना, अगर ईमान सुरैया पर भी होगा, ठीक है, तो अगर मैंने आपको वही कहा ना, अगर चला गया तो होगा, तो एक ही चीज़ है ना। नहीं है एक चीज। अच्छा फिर ठीक है, चले आगे आप चल। आपका तर्जुमा लेते हैं, अगर ईमान अच्छा सुरैया ठीक है, पर भी आगे हो, चलें, उसको आगे कौन चलें, लेके आगे आएगा? चलें, उसको आगे कौन चलें। लेके आएगा? अब कहाँ ईमान लिखा हुआ उठ है कि गया, लेके आएगा? कहाँ लिखा हुआ है लेके आएगा? उनमें से एक इन तक पहुंच जाएंगे, या यूं फरमाया एक आदमी उनमें से उस तक पहुंच जाएगा, यानी कि जो उनमें से ईमान उस उठ तक गया पहुंच है जाए। ना, क्या यहाँ उस ये तक। लिखा हुआ है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा आएंगे? तो भाई मेरे वही काम आकर उसने भी करना है, इसी वजह से तो जिसने हम भी करना है कहते उसको हैं छोड़े। कि ये आप दूसरी कुरान से ये बासत है, मतलब, दूसरी आप बासत कुरान है, पाक से यही ये तो हम मतलब कहते हैं। लेके आए हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नौजुबिल्लाह दोबारा आएंगे। उसके लिए आपने कहा हदीस की तरफ क्यों नहीं जाते? हम बार बार कह रहे थे कि जो जहां धोखा कर रहे हो हदीस में अच्छा भी यही अच्छा फ्रॉड अच्छा, लगाना आप है। मुझे अब ये हदीस बताएं। आपके सामने, अच्छा, आप इसमें से दिखाएं कहाँ लिखा अब हुआ है कि आप नबी पाक धोखा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा आएंगे। या रसूल साहब, अब आप धोखा ये दे रहे हैं। आप मुझे ये बताएं कि मैंने ये कहा था चलो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बजाते खुद वापस आएंगे, कि उनकी बासत सानी का जिक्र किया है? हेलो जी, हो गई बात। क्या हाँ कुरान जी, पाक से अभी कह रहे थे आप कि जो हाँ जी, इनमें मबूस हुए हैं वही दोबारा मबूस होंगे, यही कहा था ना आपने? अभी कहा भाई था इसने, उनमें तो अभी कहा वो तो था। अब वफात मुकर पा अभी गए। गए, कहा वो तो था। आ सकते अब हैं। हदीस में इनका झूठ पकड़ा गया, अब मुकर नहीं गए, कह रहे नहीं, मैंने कब हदीस में कहा? नहीं, अभी अभी देखो, आप झूठा इल्जाम ये लगा रहे हो कि मैं कह रहा हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बजाते आपने खुद कुरान आएंगे। पाक पढ़ के मैंने ये नहीं बासत कहा था कि जो सानी, रसूल मबूस हुए मैंने हैं वही बासत दोबारा होंगे। सानी, हाँ जी, मैंने वही बासत वही सानी, बात सानी ना। बेइज्जती ऐसे सानी ही किसकी कहा। होती है? जिसकी पहले अव्वल हो चुकी हो। हाँ जी, तो बेसत सानी उनके जो जिल के जिसकी ऊपर अव्वल ही हो आएगा चुकी है ना। उसी की सानी होती है ना। तो बताएं हाँ कहाँ जी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं दोबारा आऊंगा? तो हदीस शरीफ देखे में ना कहाँ वो लिखा हुआ है? हदीस शरीफ में वही तो वो बता रहे हैं कि जब ईमान सुरैया पर उठ जाएगा, तो वही काम जो उम्मीन में आयात करके पाक तो किया भाई उनको, काम उसी तरह वही ये पाक काम करेगा। वही काम फिर वही काम। आप जो कुरान पाक से मतलब निकाल के आए थे कि नबी पाक अच्छा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मुझे, दोबारा मबूस अच्छा, होंगे, कह रहे थे ये हदीस में, हदीस में क्यों नहीं जाते? हदीस में, अब हदीस में आए हैं, अब दिखाएं कहाँ लिखा हदीस हुआ है तो कि नबी पाक सल्लल्लाहु आखरीन अलैहि वसल्लम का, ने फरमाया कि तो मैं दोबारा आऊंगा। आखरीन का मतलब बता दिया ना, कि जब ईमान सुरैया पर होगा, ठीक है, हाँ कि जब हाँ ईमान दुनिया से उठ जाएगा, हाँ। नहीं ठीक है, नहीं, इसका यही इस तरीके मतलब से है ना कि ले जो है। इसको, इस जीवन में लेना कि मेरा बच्चा मेरे कारोबार को सुरैया तक पहुंचा दे, बढ़ा दे। ईमान सुरैया तक ऊपर तक चला गया है। एक शख्स आया और उसने उठ जाना, ईमान बिगाड़ा। ईमान के उठ इस जाने का तरीके से भी जिक्र ले है, लेना इसको। पहुंचा देने का जिक्र नहीं है। हाँ उठ बिल्कुल जाने ऐसा का ही है। जिक्र है कि अच्छा दुनिया जी, में ईमान हाँ नहीं जी, रहेगा। वसीम साहब आप बताएं जरा, इसमें लिखा हुआ है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा आएंगे? तो उनकी बासत सानी का ही जिक्र है, वो कहाँ उम्मीन से में बात से आयत पर पढ़ दिखाएं? के कोई सुनाई ना। बात, कोई अब सानी, मेरी कोई बात लफ्ज सुने, दिखाएं। मेरी बात सुने, जब ईमान सुरैया पर उठ गया, जब ईमान सुरैया पर उठ गया, उठ गया। आयात उठ गई ना, यानी कि रस्मुल खत रह गया, उसको दोबारा से जो वापस मर्जी ला के मतलब लो नाफिज आगे। कौन करेगा? हाँ उठ जी, अल्लाह गया तो ताला है कहाँ ही अपनी लिखा नहीं। हुआ आयत है, कहाँ दोबारा, लिखा हुआ है इसमें कि नबी जैसे पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा आएंगे, या कोई नाफज जो करेगा वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि देखें वसल्लम होंगे? देखें, और उनकी बासत सानी का जिक्र है। मैंने तो भाई पहले दावा ही बासत यहाँ से वो स्टार्ट किया यहाँ था। कोई बासत का लफ्ज, कोई देखें सानी का लफ्ज, कोई देखें नबी का जिल लफ्ज कुछ है तो यही दिखा दे। यही आपने आपने मुझे क्या कहा था कि साबित करो कि मिर्जा कादियानी कुरान से कैसे है, हाँ ठीक है, मैंने हाँ जी। उन्होंने अपने दावे में लिखा हुआ ना कि वो जिल है नबी करीम सल्लम की, आप ओ जिली भाई अंदरूजी उनका होकर दावा आए नहीं ना हैं। मैंने देखना, हाँ मैंने जी, हाँ जी, मिर्जा हाँ का जी, हाँ दावा जी, नहीं देखना, मैंने ये हाँ देखना जी, कि हाँ जी, कुरान पाक हाँ से जी, आप हाँ मिर्जा जी, को कैसे आगे साबित आप करते उनकी हैं। किताबें दिखा रहे थे ना, जब उनके दावे के मुताबिक ही मैंने आपको दलील देनी थी ना। और मैं आप फिर कुरान पाक दिखाऊं से वो ये कह। साबित करके आए हैं, हाँ कुरान जी, पाक से ये वो साबित उनके करके दावे आए हैं के, कि मिर्जा गुलाम कादियानी नहीं आना है। तो उनके जिल ने आना ना, उन्होंने जिल होने के और दावा भाई किया है ना। कुरान पाक से आप ये कह के हैं वसीम साहब कि नबी पाक, सारी दुनिया ने सुना है कि नबी पाक हाँ सल्लल्लाहु जी, अलैहि वसल्लम की दूसरी बेइज्जत होनी है, यही कहा है आपने। और तो आपने आपका कहा जी सवाल क्या हदीस था? अच्छा शरीफ है, अच्छा हदीस अच्छा, शरीफ की तरफ क्यों नहीं जाते? हदीस हदीस पे शरीफ, पहले अच्छा आपने झूठ चले बोला चले, कि सहाबा कराम ने फरमाया वो कौन लोग हैं जिनसे आप दोबारा मिलेंगे। हदीस में तो ऐसी कोई बात ही नहीं है, ये सारा झूठ आपका गढ़ा हुआ था। अब हदीस शरीफ आपके सामने है, आप किसी जगह कोई एक लफ्ज दिखा दें जहां लिखा हो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं दोबारा आऊंगा, या कोई नबी आएगा, या कोई बेइज्जत होगी किसी की, कख भी नहीं लिखा हुआ। अच्छा आपका या सवाल सब क्या टाइम था जाया मेरे करवा से? रहा है, खाम खाई फजूल है ये। आपका जुमा भी जाएगा आपका। हाँ जी, अच्छा आपका सवाल अच्छा, क्या चलें था? जी, पहले सवाल ये चलें, था, ज़िया साहब ने तो सवाल ये बहुत सारी था बातें कर ली। वसीम कि साहब मेरी बात कैसे सुने यार, आप मैं बड़ी अच्छा देर से ये सुन रहा जो है हूँ। ना, मसीह मऊद ज़िया साहब एक को सेकंड साबित ठहरो, करते एक सेकंड हो ठहरो, सकते? ज़िया अब साहब एक आपके हवाले सेकंड। ये करके मैंने जा रहा हूँ मैं। अच्छा जी, कुरान वसीम साहब मजीद मेरी बात सुने। मजीद हमारे देखिए यहाँ पर ना देखिए दजल से दुबई काम नहीं में लेना ना,
यार आपसे दुबई में यहाँ पर ना अजान ज़ोहर का वक्त होने लगा है। मेरी बात सुन ले बड़े गौर से। इनसे जाने दें हम आपकी ये कज बहसी के लिए ना अपनी नमाज को नहीं छोड़ सकते। नंबर एक, अब मैं आपसे सवाल एक ऐसे एंगल से करने लगा हूँ कि शायद कि मेरे दिल में उतर जाए तेरी बात। यार मैं इतनी देर बाद बोलने लगा हूँ, आप बात सुन लो प्लीज, मेरी भी बात सुन लो प्लीज, नहीं आप रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। जब बात ही मैंने उनकी माननी है, उन्हीं के सवाल के जवाब में मैं आया हूँ। उनकी नहीं, कुरान से बनाया है आपको, कुरान की में बात माना है। माननी मारी नहीं माननी मारी क्या औकात उन्होंने है मेरे से सवाल किया। यार आप एक मिनट चुप कर। उन्होंने मेरे से सवाल किया कि यार। पहले तो ये साबित करो कि ईमान सुरैया पे चला गया था। हाँ जी, अगर ईमान साबित करो। सुरैया पर होगा, ठीक है ना, हाँ, तो हाँ चला गया। सारी सी बात है ना, कैसे चला गया? कर रहे हैं ना इस चीज की कि ईमान सुरैया पर नहीं कैसे चला गया? अच्छा तो आपके मिर्जा साहब आ चुके हैं सुरैया से ईमान को वापस लेके? दूसरी हदीस आपके मिर्जा साहब आपके मिर्जा साहब ने सुरैया से आपके मिर्जा साहब बकौल आपके मिर्जा साहब सुरैया से ईमान ला के वापस दे चुके हैं आपको, ऐसे ही है। अब मुझे ये साबित करें कि सुरैया पे वो कैसे गए थे? रॉकेट पे बैठ के गए थे। बोलते रहो आप जितना मर्जी। वो सुरैया पे रॉकेट पे बैठ के गए थे, जिस तरह आप हमारे मुसलमानों से पूछते हैं हजरत ईसा रॉकेट पे गए थे या कैसे गए थे? जवाब दो। क्या मिर्जा साहब रॉकेट पे बैठ के गए थे सुरैया सितारे पे? मैं कौन सा रॉकेट इस्तेमाल किया था बताना? सवाल भूल गए, चंद्रिया कौन सा भूल गए। रॉकेट था? मुझे कहा कि आप रॉकेट था, चांद गाड़ी थी, माल गाड़ी थी, कौन सी थी? खैर माल गाड़ी तो ना ले आओ क्योंकि माल गाड़ी तो होर गल निकल आंदी है। चांद गाड़ी थी। हाँ कौन सा सुरैया? किधर था सुरैया? अभी आप मजाक उड़ा लें नबी। क्या सुरैया का भी कोई आपा सुरैया का नाते नहीं रखा हुआ? वो देखिए जब हदीस का मजाक उड़े अब सवाल का नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना कि अब आपने कहा ईमान चला गया सुरैया पे। सुरैया आप कह रहे हैं ईमान चला गया सुरैया पे। भाई आप लोग ईमान को सुरैया से नीचे लाने के लिए एक फारसी आदमी आपका तर्जुमा मैं ले रहा हूँ। अल्लाह अकबर, ला हौला वला कुव्वता। किस हद तक गिरना मेरा अपना तो आप बताते ही नहीं हो। फर्ज अपना। अच्छा चलो यार, अगर आप ये कह रहे हो ना तो बहुत बड़े मुनाफिक हो। ISO 9000 सर्टिफाइड मुनाफिक हो तुम वसीम। मैं तुम्हें ये आज बता दूं, हजरत ISO 9001 और ISO 14001 सर्टिफाइड मुनाफिक। मेरी बात मैंने सुनो। उनको कहा कि सूरह जुम्मा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एडिट तुम्हारा सर्टिफिकेट दे दिया आपने एक आदमी। जी भाई ना, ISO 9000 सर्टिफाइड कर दिया। फिर उल्टे पैरों घूम गया। तो मैंने ही उनको हवाला दिया जो कुरान मजीद में था और जो हजरत। अच्छा यार, मिर्जा साहब सुरैया पे कैसे गए थे? ठीक है, चले हम बफरज मोहाली कह देते हैं कि ईमान जो था वो सुरैया पर चला गया था। आपके मिर्जा साहब आप कह रहे हैं कि वो सुरैया पर गए थे और ईमान को नीचे लेके आए थे। अब मुझे बताएं कि सुरैया पर वो कैसे गए थे? वही नबी वो कैसे गए थे सुरैया पर? आखरीन का जिक्र करते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि यार सुरैया पर कैसे गए? यार सुरैया पर कैसे गए? रॉकेट में गए थे? कैसे गए थे? बात यूं है वसीम साहब, वसीम क्या साहब वो दज्जाल के गधे पर बैठ के गए थे? कौन सा वाला था? गधे पर बैठ के गए काजमी थे? साहब, काजमी रॉकेट में बैठ के गए थे? कैसे गए थे? सारे रुक जाएं यार, एक मिनट। वसीम साहब ऐसा करें, नहीं बोलने देना ना, क्योंकि मैंने बस में वसीम भाई आप ऐसा करें, बहुत आपको फ्री हैंड दिया है, बस करें, थोड़ा एहतराम भी करें होस्ट का। ये लाइव हमारी है, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपको फ्री हैंड दिया, कहीं आप ये ना सोचें बहुत हो गया। कल इंशाल्लाह आप आएँ टाइम पे और साथ में इब्ने माजा को भी लेके आए, इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। बहुत अच्छा मुकाबला किया। अभी भी नहीं आया। अभी ये मेरा आखिरी कमेंट, क्योंकि हाँ उसको लाने का वैसे फायदा कोई नहीं है। ये तुमने सच बात बोल दी अपने मुंह से आखिर का। क्योंकि डरते हैं आपके लोग, एक तो भाग गए, ठीक है? और डरते हैं बिल्कुल झूठ और शैतान से डर लगता है। अपनी लंगोटें छोड़ के भागा हुआ है। शैतान से डर लगता है। भाई आदमी साहब वो नीचे से भी ऊपर नहीं आया था, हाँ वो वहीं से जूते यार, लेके भाग गया। छोड़ दें। आप लोग जरा खामोश हो जाएं यार प्लीज। आप मुझे चलें मौका दे जी, दें। मैं खामोश हूँ। आई रेस्ट माई केस। इन्होंने अगली दफ़ा आना है और ये साबित करना है कि मिर्ज़ा साहब सुरैया पर जब ईमान लेने गए हैं तो वो रॉकेट पे गए थे, वो टीची के सिर पे बैठ के गए थे, या वो जहाज़ पे बैठ के गए थे। जिस तरह से ये हमारे मुसलमानों से सवाल पूछते हैं ना कि हज़रत ईसा आसमान में कैसे गए, सीढ़ी लगाई आदमी थी, क्या साहब लगाया था? काला कालू के आपने साथ, बताना है अब हमें। काला कालू बिल्कुल 4 जला घंटे इन्होंने काला हमारे कालू खाए, भी है। इतना तो हक बनता है। ये इतना तो जवाब ला के देगा। वेल्डन। वो साहब मुझे आखिरी इजाजत है। बहुत खूबसूरत यार। आदमी साहब यार एक बहुत मिनट आप ऐसा करें यार, मेरी बात सुने, इनको 1 मिनट मैं देता हूँ, उनके बाद फिर इनसे चलें भाई। 1 मिनट अपना, आपको फ्री हैंड दिया 4 घंटे। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपकी लाइव में इतनी जुर्रत नहीं है कि हम लोगों को 4 घंटे आप फ्री हैंड दे दें। मैं शर्त लगा के कह रहा हूँ। हाँ जी चले, आपके काफी सारे लोग आते हैं जो गाली नहीं ना देते, हम उनको नहीं उतारते हैं, ठीक है? ओ नहीं ऐसा नहीं। चले मैं ठीक है। सबूत दूं कि नादिर के साथ मैं बैठा था और मैं एक हदीस पे डिस्कशन कर रहा था। 15 मिनट नहीं वो गुजारा, उसका पटाखा बोल गया था वहां पे।
चलो ठीक है। पटाखा, हाँ जी पटाखा, बोकी वो डिग्गी वैसे सी, ही कोकी शॉर्ट मार गई सर्किट सी। है, हाँ जी, हाँ जी, वो मैं वैसे ही आपको शॉर्ट किसी जगह सर्किट है। भेजूंगा। आपसे तो उस दिन एक ये नहीं बर्दाश्त हुआ था, 5 मिनट में मुझे नीचे उतार दिया था, ठीक है। जब चले कोई आपको बात आपके नहीं ऊपर वसीम मैं साहब, उस दिन आपसे हवाला मांग रहा था, आप ऊपर आए, आपने गलत हवाला दिया, मैंने आपको नीचे उतार गलत दिया, हवाला, गलत ठीक है ना, क्योंकि उस दिन डेकोरम ही डिफरेंट था, आज है चले डेकोरम काजमी डिफरेंट। साहब, आज आज काजमी आज साहब अच्छा इन्होंने चले जान के पॉइंट मिर्जा स्कोरिंग साहब, कर हाँ रहे हैं, जी, वो जी पॉइंट करने दें स्कोरिंग इनको, कर रहा है वो। हाँ जी, हमें कोई फर्क नहीं छोड़िए सर, आप उस आप जी आखिर 1 मिनट हाँ का जी, पॉइंट कर लें अपना पूरा, उसके एजाजा बाद समेटो आप लपेटो। आपने जी जी आपने वो सवाल ज़िया रसूल साहब का याद होगा, क्योंकि ज़िया रसूल साहब ने ये कहा कि मुझे ऐसी चीज़ बता दें जहाँ से मिर्ज़ा कोई साहब बंदा ना कुरान बोले मजीद से यार सच्चे प्लीज, साबित 1 होते मिनट हो, चलने दीजिए। ठीक है ना। तो मैंने उनको सूरह जुम्मा की आयत उस हवाले से पेश की, ठीक है ना। जी इन्होंने कहा जी कि मिर्ज़ा साहब ने बताना है, क्योंकि उन्हीं का दावा ज़िल और बरूज़ का है ना, ठीक है। या तो मुझे बता दें किसी और का दावा है दुनिया में ज़िल और बरूज़ होने का, तो मैं आपको उसका नाम बता देता हूँ, किसी का भी नहीं है। और फिर मैंने उनको ये चीज़ कुरान मजीद से यही बात बताई कि आप तो एक मामूली सा मतलब ले रहे हैं कि जी कुरान मजीद में ये नबी के बासत पहले के लिए भी हुई और आखरीन के लिए भी हुई। भाई ये तो सबको पता है कि वो क़यामत तक के नबी हैं। अल्लाह ताला कोई ऐसी बात बता रहा है इस आयत में, अल्लाह ताला वो बात बता रहा है कि जो पोशीदा खुफिया बात होती है उसमें, ठीक है। और हदीस उसकी सपोर्टिव में आती है, ठीक है। ये चीज़ तो वो मान गए कि नबी करीम वसल्लम की जो जी है, सर, ये जो बात है मुलाकात उनकी 20 सेकंड रहने आखरीन दिए के आप। लिए है, आखरीन के लिए है। और आखरीन में जब ईमान, वही ईमान जब दोबारा सुरैया पर उठ जाना था, अल्लाह ताला वही आयत दोबारा अपने नबी के ऊपर भेजकर दोबारा से जो ज़िल आया है उस दोबारा उस शरीयत को दोबारा चलें कायम सर, करना है 1 बस। मिनट हो गया सर, आपकी बड़ी हाँ जी बस ठीक मेहरबानी है, है। जज़ाकल्लाह, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक मैं मैं आपको आपसे सिर्फ, आप तहे दिल सिर्फ से मुझे भी शुक्रगुजार 1 हूँ। मिनट बाज़ सुन लोगों ने लें। बहुत नीचे गंदे कमेंट्स किए, ठीक है। आपने उनको जी नहीं रोका, बहरहाल अगर आप मेरी उनको बात सुन, रोकेंगे तो हमारे और भी लोग आएंगे आपके पास, ठीक मेरी है। बात सुनें, हाँ जी 1 मिनट, 1 मिनट हमारी भी बात सुन लें जनाब जाते। कल आप तशरीफ़ लाएं, जब आपके पास टाइम हो ज़रूर तशरीफ़ लाएं, और अपने भी लोगों को कहें कि हमें भी ऐसे फ्री टाइम दिया करें, फ्री हैंड दिया करें, ताकि आप लोगों के साथ अच्छे से अच्छे डिबेट हो और आप लोगों का मुहासबा किया जाए। दूसरा ये है कि आपने आज मेरा एक डायलॉग चलवा दिया है, मनी ना पे हो दिया पुता। बहरहाल मैं आपसे बड़ा मुतासर हुआ हूँ कि आप मानते नहीं हैं, बड़ी बड़ी बात है यार। वैसे मैंने कभी ज़िंदगी में ऐसा बंदा नहीं देखा। वैसे आपने कमाल है भाई, मन्नी ना मन्ने नहीं हैं आप वैसे। तो कल आप आएँ सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत चलें, मैं हैं, आपको हमारे मुझे फॉलो कर लें। एक दो ब्रॉड ऐसी मैं हैं, कर लूँ, आप जो मर्ज़ी बंदा ले आएँ, बदतमीज़ी ना करें, वो जितनी देर मर्ज़ी बैठ के मैंने बात फॉलो कर करें, लिया। ठीक है ना। जी चले ठीक है, ठीक है, ओके, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सर, थैंक यू, हैव अ गुड वन सर, थैंक यू, एंजॉय। कल इनसे टाइम तो ले लीजिए वसीम साहब, कल कल आ किस रहे हैं वक्त वसीम आएंगे? भाई? कल सवाल नहीं पैदा होता। कल आप किस टाइम पे आ जाइए, मुझे आप 1 मिनट अभी यार, वो ये टाइम भाई दे जब रहे हैं, आएंगे, 1 मिनट सर, हाँ जी, 1 मिनट। जब वो भाई आएंगे ना इस टाइम के ऊपर, तो मैं घंटा 2 घंटे के लिए ज़रूर रहूँगा, ठीक है। चलें ठीक है, मैं जो आपको आज इस मैसेज कर टाइम पे दूंगा आए हैं ना, 1 घंटा पहले कि मैं लाइव करने वाला हूँ। और इब्ने माजा साहब को भी लाइएगा। नहीं जी जी, वो उन्हें मैं कहें कि हाँ एक दिन ना इब्ने माजा साहब जो है ना, वो एक दिन छोड़ दें, छुट्टी अप्लाई करें छोड़ दें, अपने बॉस ये से, फड़ियाँ छोड़ दें, और वो वो आ जाएं, आए हैं तो उनका भी आपने ना नहीं जो, किया, आपके ओ खौफ में बता यार दिया कि आप उनसे वसीम बस बात कर नहीं दे, कर सकते, ओ बस। अच्छा, वसीम मैं माफ करी। एक अब बात जाहिर है वैसे मुझे कहना हवाला ना चाहता दें, हूँ। अब आपने आप ज़िंदगी में में ये और नहीं इब्ने कहना कि माजा मंदी में ना ये बस हो फ़र्क जाओ। है, वसीम भाई सुने, आप में और इब्ने माजा में ये फ़र्क है कि इब्ने माजा ने बात होने ही नहीं देनी थी, आपने तो फिर थोड़ी बहुत कर ली है ना। वो उसने बात होने नहीं देनी थी, वो तो बात चीखें मारी जानी थी बस। नहीं, ट्राई ये तो है इसने भी बहुत की है यार, ऐसी बात नहीं, ट्राई बहुत की इसने भी। नहीं नहीं, चले घुमाता रहा, कुछ उनको भी सुनी जब बात मैंने की तरह बस। पाँच घुमाता रहा उसको भी जब मैंने 5 एम्पेयर का करंट दिया था ना, तो उसका भी पटाखा बोल गया था, हाँ जी, सिर्फ इंडिया 5 नहीं ऊपर, एम्पेयर। हाँ जी, सिर्फ वो 5 करंट एम्पेयर खुद क्यों सर। लग गया, वही करंट खुद क्यों लग गया ठीक है ना। कि अब बस अगली उसको दफ़ा जो कंट्रोल आपसे नहीं मुलाकात करा। होगी ना, उसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि ईमान एक तो सुरैया पर कैसे पहुंचा, नंबर 1 चीज़, और फिर मिर्ज़ा साहब आपके सुरैया पर जाके किस रॉकेट में गए थे, या वो कौन सी चीज़ थी जो उन्होंने इस्तेमाल की। जो सवाल आप हमारे मुसलमानों से करते हैं कि हज़रत ईसा आसमान पे कैसे गए, वो सही सवाल आपसे भी होगा, तैयार होके आइएगा कि हम ही आपसे सवाल करेंगे कि मिर्ज़ा साहब रॉकेट पे बैठ के गए थे, या वो टीची के कंधे पर बैठ के गए थे, या वो कैसे आसमान पे गए थे, सुरैया सितारा कहाँ पर है, हमने वो भी आपको बताना है, आपने मैं गैलेक्सी से फाइंड करके, और वो ईमान वहाँ पर कैसे गया, आपके मिर्ज़ा साहब वहाँ से जाके नीचे कैसे लेके आए।
ये डिस्कशन होगी अब नेक्स्ट टाइम। चलें, बहुत शुक्रिया। आपका अकीदा तो आपको मुबारक हो कि अल्लाह ताला ने सिर्फ़ और सिर्फ हज़रत ईसा को इस वजह से उठा लिया कि यहूदी आ गए थे, और ये खुदा की कुदरतें बताते हैं दुनिया को, ठीक है। चलें ये चलें फिर। वसीम हाँ भाई जी, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी, बस हाँ जी, हाँ करें, जी। बस ठीक है, नहीं नहीं, वो रेस्ट देखिए करें। ना, रॉकेट पे चलो, गौर बहुत करें, शुक्रिया नासा वसीम नासा साहब। कॉल करके रॉकेट का जरा पूछ लें अभी मॉडल तो कौन सा चले था, चलें स्पेस वसीम एक्स भाई, वालों का था या बहुत नासा वसीम वालों भाई का था। थैंक जरा यू सो रॉकेट का मच, बंदोबस्त करें, रॉकेट की थैंक यू वसीम वसीम साहब, भाई थैंक थैंक यू सो इनका मच यार। इनका थैंक यू अकीदा वसीम ये साहब, है कि थैंक यू हज़रत ईसा थैंक यू। अलैहिस्सलाम को वसीम अल्लाह ने इस वजह से भाई ज़रूर उठाया ज़रूर, कल के लिए कुछ कि रखिए ना यहूदी वसीम साहब। सिर्फ चंद यहूदियों के आगे अल्लाह सर ताला आप उन्होंने बेबस किया वसीम और साहब आसमान कल के लिए रखिए ना कुछ, बाकी हम तमाम यहीं से अंबिया शुरू को अल्लाह ने करेंगे। ज़मीन पे पहुंचाया, हज़रत शान भाई ईसा को आप इन्हें आसमान पे प्लीज़ जरा पहुंचाया। हैंडल करें यार प्लीज यार। वसीम साहब, गुजारिश है कल तशरीफ़ लाइए, बहुत मज़ा आया आपके साथ सर। हम चाहते हैं कल से यहीं से शुरू करेंगे, प्लीज़। हाँ जी, तो फिर उनको भी चुप थैंक करवाए यू। ना। ज़रूर वो ज़रूर, सब हाफिज चुप आते हैं, हैं तो सब सब चुप हैं। जी वो चुप हैं आप, बस अब मैं चाह रहा हूँ कि आप यानी कि सो जाएं, थोड़ा रेस्ट कर लें सर, खाना खुना खा लें जो भी है आपको, चले बस ठीक है। इंशाल्लाह कल कल मुलाकात आपका बहुत होगी। शुक्रिया, आपका थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा जी। बहरहाल जी सर, आज की काजमी साहब थोड़ी थोड़ी आप अपना शान भाई आप किधर चले गए हैं? काजमी साहब ने माशाल्लाह, अल्लाह खुश रखे इनको। काजमी साहब जैसा वो जबरदस्त, माशाल्लाह जी माशाल्लाह, बहुत अच्छा जी, माशाल्लाह जी, बहुत काजमी इल्मियत है। साहब अल्लाह ताला आपको और इजाफा फरमाए, इस्तकामत दे आमीन इनमें जी आमीन। काजमी साहब माशाल्लाह। आप जरा सम अप और करें एजाज बस। साहब आपको भी माशाल्लाह अल्लाह ताला तकवीयत दे। आपने ये बड़ी बर्दाश्त के साथ चलाया है, बहुत बर्दाश्त के साथ चलाई ब्रॉड जी माशाल्लाह। शुक्रिया। इंशाल्लाह जी। काजमी साहब नहीं बोल रहे, शान भाई आप जरा सम अप करें कोई एक दो मिनट में। एजाज भाई, बहुत माशाल्लाह अच्छी ब्रॉड थी, सेंसिबल तरीके से चलाई गई, किसी ने म्यूट नहीं किया, और नीचे वो भी खुल के अपनी बातें करते रहे, पॉइंट देते रहे। तमाम जो हजरात थे हम उनको अप्रिशिएट करते हैं, चाहे वो अहमदी थे चाहे मुस्लिम हैं, उन सब का बहुत शुक्रिया। हम चाहते हैं इस तरह की बातचीत चलती रहे, हम एक दूसरे को समझें, हमारा खाना लिबास सब कुछ एक जैसा है, अगर थोड़ा सा अकीदे में फ़र्क है तो उसको हम क्लियर करना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया सब अहबाब का, और होस्ट ने इतनी मेहनत की है उनको भी थैंक यू, हैट्स एजाज ऑफ। साहब आपको सलाम पेश है। आपने जो दो बंदे लाए हैं आज, आपको सलाम है, 1000 बार सलाम है माशाल्लाह। बहुत अल्लाह खुश रखे, अल्लाह जज़ा खैर दे आमीन आपको। आमीन आमीन। और नहीं शादी बात कर दे शादी, काजमी साहब सम अप करो तुसी जरा एक दो मिनट से। सर मैं सिर्फ ये समाप्त करूँगा कि अल्लाह ताला सबसे पहले तो आपको जज़ा दे जो आप ये काम कर रहे हैं। दूसरा ये है कि एक बात यहाँ पर सारों को पता होनी चाहिए कि अगर ये अपने खलीफा पंजम को भी निकाल के ले आए ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें इतनी जसारत दी है कि हम इनके सामने बैठ सकते हैं हर तरह से। कुरान की बेशक आयतें ले आएँ, अपनी किताबुल किताबें फुरकान, खोल लें, जितों मर्जी आ जाओ, ओपन चैलेंज है, ठीक है ना। और जो आप लेके आएंगे हम वो चीज़ पहले लगाएंगे और आपको पूरे तरीके से उसे एक्सप्लेन करने का मौका देंगे। लेकिन फिर आपने जसारत रखनी है उन सवालों की जो सवाल आपके नादिर मसरूर अपनी अपनी ब्रॉडों पर बैठ के हमारे मुसलमान भाइयों की तजलील करते हैं। तो फिर हम भी पूछेंगे कि मिर्ज़ा साहब रॉकेट पे बैठ के गए थे सुरैया पे, या जहाज पे जी गए थे, या खोते पे गए थे, जी जिस पे गए थे हमें बताएंगे फिर जी, आप। क्योंकि बहुत जो खूबसूरत। हमारे मुसलमान भाइयों के साथ चीज़ें होती हैं ना, वो चीज़ें तो हम आपको पूछेंगे, आपसे पेन, बताएंगे। ये वो हाँ, फील उसी कर रहे थे पेन आज, से हम पेन। गुजारेंगे आपको। हाँ नहीं काजी साहब आपसे गुजारिश है, ये चीजें हमारे लिए छोड़ दें। आपके पास माशाल्लाह बहुत नॉलेज है, अल्लाह ताला इस्तकामत दे, तरक्की दे, आमीन। विजन दे। तो ये थोड़ा सा आप वो कहते हैं कि ऊंची शान और छोटी सी वो इन पे जो है ना, ये करना भी मायूब सा लगता है। ये कीचड़ है, पत्थर मारेंगे तो अल्लाह माफी दे, शाह जी, अल्लाह माफी दे। शाह जी काजमी साहब बहुत मुझे शुक्रिया। ये बताएं कि वो सवाल कैसा था जो इसमें कह रहा था जी आखिरीन मिनहुम में, मैंने कहा मुझसे क्यों नहीं मिले मिर्जा साहब? ये यार बड़ा ये जेन्युइन हम सवाल आप था, करें, ये बहुत हम कर जेन्युइन सकते हैं। सवाल था। बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपके सही पास तो कह रहे हैं, माशाल्लाह बहुत मजा आया। इल्मियत इतनी है कि आप अच्छा, उसको हर चीज पे रद्द कर सकते हैं। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैंने इतनी मजेदार ब्रॉड नहीं देखी। बेशक बेशक, यार मैं जबरदस्त। एक चीज देख रहा हूँ कि काजमी साहब को पता नहीं कहाँ से इल्हाम हो गया है, लगता है ये भी कोई मिर्जा साहब के बुरूजी बनने वाले हैं मेरे ख्याल में। वाकई वाकई आज तो काजमी साहब ने फौरन पता चल अल्लाह गया, ताला इन्होंने अपनी वाला सलाह पहले रखे। लगा दिया, चहते सही आना बात दिया है, वेलों में पहले आ जाए। ये हिदायत का मिर्जा करिश्मा जी वो होता है, काजमी साहब। ये करिश्मा सर हिदायत है है सर है अल्लाह ਉਹ की तरफ ਸੜਕਾਂ से। ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋੜਿਆ ਤੋਂ ਗੋਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਰੋਲ ਕੇ
ऐसी बड़ा रूल है ना, ये लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग जो है ना हमें पता होता है कि जब अच्छा, ये नीचे सूरह मौला बख्श निसा साहब पे आना चाह जाएंगे रहे तो हैं, उसके उनको बाद ये कह रहे किधर हैं कल जाएंगे, तशरीफ लाएं। काजमी साहब ठीक है ना। नीचे से, काजमी साहब नीचे से मौला बख्श साहब कह रहे हैं मुझे नहीं कॉल नहीं, करें। ये इन्हें हाँ, लिया था, कल इन्हें के लिया था पहले, ये किसी को शान बोलने ही नहीं दे रहे थे, शान भाई, इसीलिए इन्होंने पौना घंटा आधा घंटा ज़ाया किया। मैं इनकी मिन्नतें कर रहा था कि भाई जाने दें, आपकी मैं इज्जत कर रहा हूँ, आगे चलें। खुदा की कसम मैं इनकी बहुत इज्जत कर रहा था, लेकिन ये इन्होंने मैनू अपनी इज्जत खुद ही। ਇਜਾਜ਼ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਵਿਕਟ ਕੀਪਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟੈਂਪ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਾਜ਼ਮੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ, ज़िया भाई कर रहे, मैं तो अभी छब्बीस यार वैसे माशाल्लाह तमाम मुसलमान इतने खुश हुए हैं आज। मैं नीचे मैसेजेस सबके पढ़ रहा था, बहुत मुसलमान खुश हुए हैं आज। काजमी भाई और ज़िया भाई माशाल्लाह, अल्लाह खुश रखे, अल्लाह जज़ाक और जो खैर। आज का मेन जुमला है मनी ना, आज काम ही ऐसा हुआ, जो वो दिमाग में सोचता है ना, वो काजमी साहब जो है ना उसका वाला पहले ही निकाल के सामने रखते थे। और यार मैं तो काजमी साहब से बड़ा परेशान है कि काजमी साहब ने इन्ने इल्हाम किथों ला पे एब्रूजी हो गया, एब्रूजी हो गया। करामत आ गई मार्केट च, नवी करामत आ गई, नवा बुजुर्ग आ गया है। मरने से पहले है कादियानियों, मरने से पहले है कान और आंखें खुली होंगी कि वो उनके वाले से आज बात की है, उनकी मर्जी। सर जी, वो कह रहे थे मरने से पहले है कादियानियों, कर लो थोड़ा सा गौर। कादियानियों का कुरान और मुसलमानों का कुरान और। सुभान अल्लाह। ਅਸੀਂ ਤੇ यही डायलॉग बोली जा रहे हैं जी इंजीनियर साहब। मौला बख्श साहब आप कल तशरीफ लाइएगा, आपसे बातचीत होगी। अच्छा जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बड़े हमारे नौजवान जो लड़के हैं ना जी, एक नुमान है और वो दो बड़े बड़े ज़बरदस्त आज। आप इस चीज़ का नोट करें कि हमारे अंदर ना तो कोई जमात है, ना कोई मुनज़्ज़म इदारा है कि जो बच्चे वहाँ से फाज़िले तहसील आके तो फिर इनका मुनज़्ज़म है और मुकाबला नहीं कर रहे। देख लें जी, ये काज़मी साहब अपनी मदद आपके तहत, मैं ये सर सब पॉकेट लोग बुकें फेल हो गई हैं, पॉकेट बुकें फेल कर दी यार, हैं, आज नज़ारा ऐसे सवाल आउट ऑफ कोर्स आ जाए तो फिर तैयारी नहीं ना है इनकी। मैंने आज नज़ारा थी बाजो, नज़ारा। मैं चाह रहा हूँ अपने मुसलमान भाइयों को ना ऊपर लें, तो थोड़ी थोड़ी दाद वसूल करें। अच्छा आगे काजमी साहब, नहीं मेरा मुझे एक सवाल है कोई ना आपसे। दे भाई ये जी। काजमी साहब मेरा आपसे सवाल है, जो नीचे एजाज इतने साहब मैं मुसलमान, इजाजत चाहूंगा, 4 साढ़े 4 हो गए, फजर भी जाएगी, ईशा तो अल्लाह हाफिज़ सर, गोगा अल्लाह साहब, हाफिज़, thank you मेहरबानी so much, सर, sir। अल्लाह हाफिज़, सबको आपका सलाम। भी ख्याल रखें। काजमी साहब प्लीज काइंडली ए ब्रॉड